जख्म खाए दौर में जख्म खाए लोग, या जख्म खाए लोग तब जख्म खाया दौर। कि हम बोलते हैं कि हम चोटिल हुए हैं, हमें दर्द महसूस हुआ है, हमें लोगों ने धोखा दिया है, परेशान किया है, उसके बाद फिर हम खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं, खुद दुख में जाते हैं और हमारे अंदर का एक नेगेटिव साइड बाहर आता है। मेंटल हेल्थ अगर अब्यूज के कारण हो रहा है, मेंटल हेल्थ अगर डिसफंक्शनल फैमिली के कारण हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो गॉड जिसको हम एक एंटिटी की तरह ले रहे हैं, उसको भी अपने विश फुलफिलिंग एंटिटी बना दिया है कि हमारा भगवान ये कर देना। जहां जहां हमारी कन्वीनियंस हो, जहां जहां हमारा हमारा काम बन रहा हो, वहां पे हम उसको कुछ प्रे कर देंगे, उसकी पूजा कर देंगे, कुछ नारियल चढ़ा देंगे, कुछ और कर देंगे, वहीं पे हम दान कर देंगे, वहीं व्रत कर देंगे। उसके पीछे का एक तो हम गहरा अर्थ नहीं समझते, और लोग सोचते हैं सच में कोई ऐसा बोलने वाला ईश्वर बैठा है जो करेगा, या कोई बचाने वाला सेवियर है। मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं दिमाग बोलता है कि यार ये कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है क्या। ये तो साला हम्म। बुक स्टोरों में भी आपको खोपचे में हिंदी होती है, और वो भी आधी टाइटल्स आर जस्ट ट्रांसलेशंस ऑफ इंग्लिश बुक्स। बिल्कुल सच बात है कि बहुत दुखद स्थिति में है हिंदी। आज की जो हिंदी है या जो प्रकाशन हो रहा है, वो बस अपने को किसी तरह बनाए रखने का कोशिश कर रहा है। तो बहुत कम हिंदी पत्रिकाएं बची हैं, और कोई भी पत्रिका शायद आज से 20-30 साल पहले पत्रिकाएं आपको कहानी या कविता पब्लिश होने के पैसे देती होगी, थोड़ा कुछ नहीं है आज। जितनी भी मास्टर पीसेस हैं, वो अब मुझे ऐसे दिखती नहीं। आधुनिक ज्यादा प्रकाशन में कोई मास्टरपीस हिंदी का उपन्यास आ रहा हो या कविता आ रही हो, बहुत कम। जैसे अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हो या उस तरह की कोई कविता शैली आज ठीक है। लिखें, तो वो बिल्कुल डेड हो चुका है। Nanil, hi. It's an honor having you on Discovery of an Author podcast. We have been trying and planning to do this since quite a long time. So, Right. Nanil, again, thank you for being a part of the podcast. It means a lot that you have agreed to do this thing. As you My know, pleasure. Thank you. Discovery of an Author is our attempt to talk about the authors behind the books, to celebrate their life, their journeys, and not just talk about the books and go deep into it, but we also want to celebrate the authors. We want to celebrate the storytellers. Our vision with the Discovery of an Author was to create a company or a product or a podcast which creates stories around the storytellers. Okay. So Nanil, let's start. So you have recently written a book called Streetlight. It is a Hindi poetry Hindi book. it's a Hindi poetry book. Right. So I'm gonna what I'm gonna do right now. I'm gonna quickly show the readers your book and how I have read it. If you just give me 1 second. Yeah, yeah. This is Streetlight. It's a beautiful book. I have read it on Kindle. So Nanil, first of all, I must congratulate on the book. I think it's a brilliant book that you've written. The poems Thank you are so much. so nice. There were certain poems that hit me really hard. And Right. I thought that before we move into your childhood, before we go into who you really are, I would want to first celebrate your work. Let's just get acquainted with the work first. Once we Sure. get acquainted with the work, I think we'll have a better understanding about your childhood, and then we can go behind the scenes and understand more about Right. it, right? Right. Okay, so now what I'm going to do, Nalin, to really tell the viewers and to you also how much I really appreciated the book. There were a lot of poems that I really liked, but there were 4 poems which really hit me hard. I'm going to narrate those poems in my very bad Hindi. Um, Sure. and we're going to then ask you your analysis. I'm going to ask, we'll go deep dive into each poem Okay. because Sure. because for the viewers, those who are not aware of the book, Nanil's book, the poems that he has written is not just simply pyar mohabbat ishq. It's spiritual in one level, it's philosophical in one level. कुछ कुछ पोएम में बहुत दर्द था जो मुझे महसूस हुआ. कुछ कुछ पोएम में बहुत खुशी थी जो मुझे महसूस हुई. तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत डीप पोइट्री लिखी है आपने, बहुत डीप कविताएं लिखी हैं आपने, और ये उसी व्यक्ति से निकल के आ सकती हैं जिसने लाइफ में बहुत देखा है. आई एम गोना नरेट नाउ कपल ऑफ पोएम्स दैट आई रियली लव्ड. Yeah, sure. And the reason why I do that is that because for people who don't know about you or your book, if they can just read just listen to the poem, and if they can get interested in purchasing it, that would be Right. Right. okay. Right. So I'm going to highlight the first poem called दूरी. वो जब दूर जाएगा तब बोध होगा कि
वो कितना दूर जा रहा है, और वो कितना पास था जब वो दूर नहीं था। जब दूर हो जाएगा तब एहसास होगा कि कितना दूर वो चला गया है। कुछ दूरियां नापी नहीं जा सकती। तब जितना दर्द होगा उसी से दूरी पता चलेगी। लगेगा कि मन बहलावा से दूरी अनुभव नहीं होगी, पर दूरी कम नहीं होगी। तब दुख से दूर और नहीं रहा जाएगा, फिर वो दूरी तय होगी जिसमें स्वयं से स्वयं की दूरी का पता चलेगा। राइट। This is why I first tell you why I highlighted this thing. This poem hit me very hard. It reminded me of some of my, इसको बोल सकते हैं ना, पुराने जख्म की राइट। तरह ये चीज मुझे हिट हुई थी। और बहुत प्रोफाउंड वे में मैंने ये पोएम पढ़ने के बाद सोचा, काफी सारी चीजें आई, काफी सारी मेमोरीज मेरे माइंड में आई, अच्छी बुरी। और मुझे सही में लगा कि वो जब दूर जाएगा तब बोध नहीं होगा कि कितना दूर जा रहा है। ये 3 लाइन में ना बहुत हिट हुई थी मेरे को, एंड आई थिंक दिस वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। So Nalil, I want you to now tell, share your thought process behind दूरी, whatever comes to your mind, however, कैसे लिखी आपने, क्या सोच के लिखी, क्या मतलब है इस चीज का, आप बताइए। शायद जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी से भी, तो ये बताना, जैसे मैं बोलूं आपको कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करता था, वो बहुत कितना होता है, लोग पूछते हैं। जैसे अगर आप अपनी प्रियतम से बात करें, आप कहो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो वो कहेगी कितना बहुत। हम्म। ठीक है। तो उसको शायद नापने का एक प्रयास था ये कविता। हम्म। यानी कि उसको एक ऐसे समझाना कि अगर उसको मेजर तो हम नहीं कर सकते, उसका कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर अगर हमें बताना हो कि जब सेपरेशन भी होता है जिनसे हम प्यार करते हैं, हम्म। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के साथ होता है, तो उसको शायद दर्द जितना हम महसूस कर रहे हैं, उसको अगर बयां कर सके तो हम ये बता पाएंगे कि हम कितना प्रेम भी करते थे, हम्म। और हमें उनके जाने के बाद कितना दर्द हुआ। और हम्म। उसमें फिर उसका जो हम समाधान ढूंढते हैं उस दर्द को खत्म करने का, वो हम्म। यही होता है कहीं ना कहीं कि हम स्वयं के ही पास आना पड़ता है, कहीं और जाके भी नहीं होता है फिर वो ठीक। तो फिर स्वयं के पास आकर के जब फिर पता चलेगा कि हम खुद से भी कितना दूर थे और कितना पास आ सकते हैं, तो उसी पे ये कविता थी। ये नल मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या ये कविता आपके अंदर से कैसे आई? क्या कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए थे आपके जिसको राइट। शायद ये आपको, क्योंकि देखिए एक कवि हैं आप, एक राइट। कवि, जहां तक मैंने जितनी कविताएं पढ़ी हैं, मैं जितना पढ़ता हूं, वो कवि अपने एक्सपीरियंसेस को, दुख खुशी गम को ही बयान करता है कविता में, तो तभी वो कविता में राइट। निकलती है। अदरवाइज इट करेक्ट। वुडंट हैव बीन पोएट्री, इट वुड हैव बीन प्रोज। There would राइट। have been राइट। a difference in that. करेक्ट। I sometimes become poetic when हम्म। I have gone through something pretty hard. राइट। I want to know, what were there certain instances like that आई in थिंक your life that prompted you, any one thing that you can जी, आई थिंक मैंने pick out? रिसेंटली अभी फ्रांस काफका का भी कोट पढ़ा था कि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अगर आप एक साथ मेच्योर और रोमांटिक दोनों होते हो, Hmm. तो उससे बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती। तो अगर आपके अंदर दुनिया की रियलिटीज को देखकर, यथार्थ को देख करके बहुत सारी समझ तो आ गई है, Hmm. पर अभी उस तरह का लोगों से आपको आसक्तियां हैं, अटैचमेंट्स हैं, मोह करते हैं, और आपके मोह भंग भी हुए हैं, फिर भी आपको और कोई तरीका नहीं आता है, आपने प्यार किया है लोगों को, वो आपको छोड़ के गए हैं या आपको उनको छोड़ना पड़ा, तो उसमें दर्द मुझे लगता है बहुत से लोगों ने, लगभग सभी ने किसी न किसी रूप में किया ही होता है। बिल्कुल। तो वहीं से आया है, क्योंकि बहुत मैंने भी लोगों को बहुत ज्यादा प्यार किया होगा, निभा नहीं पाते हैं हम लोग, हम खुद भी कम, हम में भी कमी होती है, दूसरी परिस्थितियां भी होती हैं, या कहीं और से कोई बात होती है, तो उसी को शायद बयां करने के लिए वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में बैठी होगी बात, तो फिर वहां से वो अवचेतन मन से आया मेरे। जब ये आप ऐसी कविता लिखते हैं, लिखने जी। के बाद, एज अ ऑथर आई एम आस्किंग यू, एज अ लेखक आई एम आस्किंग यू, जी। डू यू रिफ्लेक्ट, और आपके सबकॉन्शियस में थी ये चीज, आपने लिखी, लिखने के बाद हम्म। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार एक सर्कल कंप्लीट हुआ है,
या आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली क्लोजर यही। मिलता है? जी जी बिल्कुल। क्रियात्मक चीजों को करने का सबसे बहुत बेहतरीन फायदा मुझे यही दिखता है कि जब आप उसको कर रहे होते हो ना, और जब वो होने वाला होता है या जब वो हो जाता है, तो कम से कम उस पल के लिए जब वो हो रहा होता है तो एक संतुष्टि का भाव रहता है। बिल्कुल। उस समय आपको लगता है आपने कुछ एक सौंदर्यशील चीज आपने रची है जो आपके दिल को बयां कर सकती है। और मैंने एक और चीज में था कि मैंने जब इस किताब की प्रस्तावना में लिखा है कि मैं अपनापन ढूंढ रहा हूँ, किताबों के थ्रू ही वो मुझे मिला। क्योंकि हमारे जो कष्ट होते हैं ना, वो दूसरे को सुना करके भी वो सिर्फ बिल्कुल समझ पाता है, फील नहीं कर पाता। नहीं कर पाता है। तो जब फिर वो जो शब्द लिख दिए होते हैं हमने कविता के रूप में या किसी भी गद्य पद्य के रूप में, एक उसको रचनात्मक पहलू के रूप में हम लिखते हैं, तो वो उस पल लगता है कि चलो मैंने अपनी बात रख दी। अब इसको कोई और पढ़ेगा तो शायद साझा कर पाऊंगा, वो भी अपने से रिलेट कर पाएगा। और इसीलिए शायद किताबें लिखी जाती हैं, कुछ सीखने के लिए या कुछ आपसी म्यूचुअल लेवल पे जो फील होता है वो बयां करने के लिए। मैंने आपसे ये इसलिए भी पूछा आपको कि मैं आई थिंक राइट। फ्रॉम अ रीडर्स पर्सपेक्टिव ये बताना चाहता था कि मुझे क्यों लगा कि क्लोजर मिला होगा, क्योंकि मुझे पढ़ के भी क्लोजर मिला। सो आई थिंक राइट। इट्स वेरी प्रोफाउंड थिंग, राइट, कि आप लेखक ने जब लिखा हो तो मिला ही है, पर जो पढ़ने वाला है ना, कहीं ना कहीं मैंने भी इसको 2-3 बार पढ़ी। हम हाँ, सब तो इसी से इसका सार्थक हो गया बिल्कुल ये, और बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल। बस यही होता है। अब आई मूव ऑन टू नेक्स्ट पोएम। जख्म दौर में जख्म खाए लोग, या जख्म खाए लोग तब जख्म खाया दौर। मैं कुछ चाहता हूं तुमसे, मैं छिपा जख्मों का शाप, बुलंद चोटी चढ़ने जैसा लगे जब संतों से सुनता हूं सुख मार्ग। मैं हूं कि जख्म से मैं सब में हूं का स्थिर एहसास, प्रेम समझा और महसूस किया है मैंने, पर अभी प्रेम हो नहीं पाया हूं, क्योंकि जख्म खाए लोगों से हुए हैं जख्म प्राप्त। प्राप्त। Beautiful. I think this was extremely deep and philosophical. And I would want you to explain. First of all, I would हम्म। want you to explain what you meant by this poetry. कि कवि क्या कहना चाहते हैं वो आप explain करेंगे. Then I would want to understand where आई this is थिंक आई coming वुड from. लाइक टू रीड इट अगेन फॉर यू Yes, इन please do वन that. और Yes, फ्यू लाइन्स। that would be great. आई थिंक हाँ, छोट पर इसको मैं समझाना जरूर चाहूंगा क्योंकि शायद Yes, एक पर्सपेक्टिव देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। absolutely. तो जैसे जख्म खाए दौर में, जख्म खाए दौर में जख्म खाए लोग, या जख्म खाए लोग तब जख्म खाया दौर। यानी कि मैं इस पूरी कविता में ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बोलते हैं कि हम चोटिल हुए हैं, हमें दर्द महसूस हुआ है, हमें लोगों ने धोखा दिया है, परेशान किया है, जो भी किया है। उसके बाद फिर हम खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं, खुद दुख में जाते हैं, और हमारे अंदर का एक नेगेटिव साइड बाहर आता है, चाहे वो डिप्रेशन का रूप ले, अवसाद का रूप ले, गुस्से का रूप ले, या हम खुद उन जैसे बन जाए जिन्होंने हमें अपने जैसा बना, जो जिन्होंने हमें दुख दिया। पर ये शुरू कहाँ से हुआ होगा? यानी कि मेरा जो मानना है, बहुत स्ट्रांगली मानना है, जो लोग हम ये भी कहते हैं कि एक चोर है या एक रेपिस्ट है या एक आतंकवादी है या कोई भी कुछ है, वो एक कंडीशनिंग से आ रहा है, वो एक पीछे उसके एक चीज हुई है, उसके साथ एक कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है। उसने जीवन में वही सीखा, उसको वह वैसी ही चीजें प्राप्त हुई, क्योंकि हम सब में एक चीज कॉमन है, हम लोग सिर्फ पूरी तरह से अपने सुख के लिए काम करते हैं। जिसको जो समझ में आया कि इससे मुझे सुख मिलेगा वो करता है। उस सुख को प्राप्त करने में उसको चोटें लगती हैं, फिर वो दूसरे को वो बांटता है, फिर दूसरे को चोटें लगती है। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये एक्सचेंज चली आ रही है। और फिर संत लोग और जो समझदार लोग हो जाते हैं ना, वो वही लोग हो पाते हैं जो उस चेन को रोक पाते हैं, अपने तक आने के बाद आगे नहीं बढ़ाते, और फिर खुशियों बांटने का काम करते हैं। क्योंकि जितने भी लोगों से हमें दुख मिला भी होगा, वो लोग हम्म। खुद भी कहीं ना कहीं अधूरे, दुखी, चोटिल, जख्म खाए होंगे। तो ये मुझे लगता है। मुझे तो लगता है कि इसलिए ये प्रश्न के साथ खत्म होती है कि हम्म, क्यों पर अभी प्रेम समझा, और प्रेम समझा है, मतलब प्रेम समझा है, जाना है, सब कुछ किया है, पर अभी प्रेम हो नहीं पाया हूँ। क्योंकि मुझे समझ तो आ गया है, पर मुझे अभी भी होना नहीं आया कि प्रेम वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि चेन खत्म करने वाला, मैं एब्सोल्युटली। ऐसा कभी खुद भी नहीं हो पाया हूँ कि मैं वो देना बंद करूँ, वो दुख दूसरों को देना बंद करूँ कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे भी जख्म खाए लोगों से जख्म प्राप्त हुए हैं। एक्चुअली
ये जो आपकी लास्ट लाइन है मैं वापस बोलना चाहूंगा, क्योंकि राइट। जख्म खाए लोगों से हुए हैं जख्म प्राप्त। हमें इसमें मैं एक और बात बोलना चाहता हूं जो मुझे लगी ननिल। राइट। मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी जाने अनजाने में जख्म खाया हुआ व्यक्ति भी शायद नहीं जानता कि उसमें जख्म है, हम्म। और जख्म खाया हुआ व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि उसने किसी और को भी ये पास ऑन कर वो दिया जख्म है। दिए। हाँ। राइट। और ये जब जब आपको कोई बताए, या जब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने किया था, मुझे लगता है कि राइट। वो चीज इंसान को तोड़ देती है। क्यों तोड़ती है? क्योंकि उसको दो तरीके से, एक वो था टू फ्रंटल वॉर। हम्म। That person realizes that he or she himself has been a victim of hurt, of राइट। something traumatic, and B, हम्म। that she or he then passed it on to someone else and the chain समझिए। continues. और फिर वो उसका भी गिल्ट ले, एक तो विक्टिम है, खुद उसने जख्म खाए हैं, फिर वो गिल्ट भी ले रहा है कि उसने दूसरे को भी वो दे दिया है कहीं ना कहीं। The prey and the predator. This is what राइट। happens, right? So you were a राइट। prey and then you became the predator, because then you, प्रेडेटर। and then comes something which is very scary. जैसे आपने अभी सत्य बात बोली, इस बात को, ये चेन खत्म ही नहीं होती, हम्म। क्योंकि ये हमारे जहन में, हमारे नेचर में इतना इनेटली घुसी हुई है ये चीज। हाँ, इनग्रेन्ड हो गया है बिल्कुल। मैंने इसको सिर्फ कविता नहीं देखी है, मैंने आई सॉ दीज पोएम्स एज द हार्डकोर रियलिटीज ऑफ लाइफ which have been translated into poetry by someone who has been through them all. So राइट। that was extremely beautiful, and I hope when people purchase your book, जैसे मुझे कुछ कुछ कविताओं में बहुत एम्ब्रेसिंग फीलिंग आई, बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत reflecting feeling. I hope people get that feeling when they read your book. So, जी। you know, so before I move on to the next poem, again thank you, Nanil. This is जी। very bravely you have written whatever you have written. It's you know, it's like you have bared yourself out there. You know, it's commendable. राइट। Okay, राइट। थैंक यू। let's move on to the next one. यह पल पूरा है. And Nanil, once I do recite, feel free to recite from your end as well. ओके, श्योर श्योर। यह पल पूरा है. मैंने देखा है अधिकतर की बिगड़ा ठीक हो जाता है, सब होगा सही वक्त पर होगा, जाना कहां है. फिर भी तुम धक्के खा रहे हो, नहीं मानते हो, क्योंकि अगला कुछ होना वैसे ढूंढते हो जैसे अगली पंक्ति को पढ़ना. अन्यथा अधूरा रह जाता है पूरा होना, यह पल ही पूरा है देखो. देखो। राइट। Recite from your end, and then let's go deep dive into this thing. यह पल पूरा है, मैंने देखा है अधिकतर की बिगड़ा ठीक हो जाता है, सब होगा सही वक्त पर होगा, जाना कहाँ है. फिर भी तुम धक्के खा रहे हो, नहीं मानते हो, क्योंकि अगला कुछ होना वैसे ढूंढते हो जैसे अगली पंक्ति को पढ़ना. अन्यथा अधूरा रह जाता है पूरा होना, यह पल ही पूरा है देखो. सो या Explain the origin behind this poetry. सो हम हमेशा, जैसे अगर मैं, इफ आई एम 26 एट दिस टाइम, एंड हम पूरे जीवन भर ये सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो उसके बाद मैं सेटल हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, वो कभी नहीं होता. और ऐसे ही आगे भी मैं जीवन को, अगर मैं 1/3 अपनी लाइफ जी चुका हूँ, तो बाकी 2/3 भी मैं ऐसे ही जी के खत्म कर सकता हूँ कि आगे कुछ होगा फिर मैं सेटल महसूस करूंगा. जो हम आध्यात्मिक पक्ष को भी लाना चाह रहे थे वो इसमें आएगा कि जो माइंडफुलनेस कहते हैं जिसको, मेडिटेशन को, हम उसमें इसी पल में जीना सीखना, कोशिश जो होता है, हमारा हमारा प्रयत्न रहता है कि हम इसी पल को समेट लें अपने अंदर, पूरा सोख लें, इसको जी लें पूरा. हम जी ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम या तो आगे का हो रहे होते हैं या पीछे सोच रहे होते हैं या कुछ और, हमारे मन मुटाव, अन्य उत्कंठाएं, अलग अलग बातें हमारे मन में होती हैं, और हम कभी इस गांठ के बाहर ही नहीं होते हैं. हम कभी इस वर्तमान में, इसी पल में, अपनी श्वास के साथ, अपनी सांस के साथ, खुशी से, मुस्कान से इसको जी ही नहीं पा रहे होते हैं. तो मैं अपने आप को भी और दूसरों को भी शायद यही बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो यही है सारा जो है. और एक्चुअली देखा भी जाए तो सारा वर्तमान भूत भविष्य यही है, यही भूत भी था, यही वर्तमान भी है इसी समय. तो जी. मुझे ना couple of things which I loved about this thing. What I, जो मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने बिगड़ा ठीक हो जाता है, सब होगा सही वक्त पर होगा, जाना कहाँ है. हम्म.
मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इसका शिकार हूं। राइट। सभी हैं, हम सभी हैं कहीं ना कहीं। मैं इसका विक्टिम हूं। और जब मैंने, और मुझे कहीं ना कहीं पता है, मेरे जहन को पता है, मेरे शरीर को पता है, मेरे कण कण को पता है कि सब होगा, सही वक्त पे होगा, जाना कहाँ है। हमें कुछ यहां पर करने की जरूरत नहीं, इसी पल को जी लें तो उसी में हम हमारा होता रहेगा। ननिल विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएम, और मैं इस पे ही खत्म करूंगा चार पोएम पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रीडर्स पढ़ें, रीडर्स राइट। परचेज करें, बिकॉज आई हैड अराउंड 8 poems, but I thought कि हम्म I'll just go with the 4 because I want हम्म people to also read it. अगेन ये भी अगेन वैसी ही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कविता का नाम, मैंने कैक्टस के कुछ कांटे तोड़े। उस हम्म कैक्टस की तह लेने के लिए जो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, मैंने उसके कुछ कांटे तोड़े और देखा तो उनके तलवों पर एक नरम गद्दी मिली। कुछ चीजों जो आहत करती हैं, कुछ चीजें जो आहत करती हैं, मूल रूप से नरम होती हैं। नरम होते हैं। Again, this was very beautiful. I'll tell you my perspective, and then you recite, and I'll ask you about your राइट। perspective. I, the way I saw it, there are certain things that look very daunting to me when I want to हम्म start or when I want to do, because I हम्म do not understand how the things work. But when I go into it, when I start with it, I realize that अरे मैं खामोखा हम्म ही डर रहा था यार। ये तो हम्म मुझे मुझे लग रहा था ये चीज कांटों से भरी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर एक हम्म नरम सी गद्दी है। देयर इज अ वार्मथ इन हम्म दिस थिंग, दिस इज समथिंग व्हिच इज डाइजेस्टेबल। सो द हम्म वे आई सॉ इट, दिस वाज फॉर मी द फियर ऑफ समथिंग न्यू, हम्म or fear of doing something new. But once you start doing it, you realize कि अरे this is doable. I should have started earlier. So हम्म। this is what I understood from the poem, and that is why it was very profound for me. So Nanil, जी। again, I request you to recite, and then we'll ask the ओके। origin and your perspective on that. मैंने कैक्टस के कुछ कांटे तोड़े, उस कैक्टस की थाह लेने के लिए जो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। मैंने उसके कुछ कांटे तोड़े और देखा तो उनके तलवों पर एक नरम गद्दी मिली। कुछ चीजें जो आहत करती हैं मूल रूप से नरम होती हैं। यही इस कविता काव्य का यही बहुत सुंदरता ही इस बात में है कि जितने पाठक होंगे, जितने भी रीडर्स होंगे, वो अपने अपने रूप से इसको इंटरप्रेट और अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने जिस रूप में लिखी थी वो सिंपल सा था। मैंने एक दिन एक कैक्टस देखा और मैंने सच में उसका एक कांटा तोड़ा। राइट। अच्छा। और मैंने देखा ये बहुत नुकीला कैक्टस है, पर उसके नीचे उसको कुछ साइंटिफिक टर्म भी होगा उसका, वो कुछ नरम रुई रुई सा था उसका। ठीक है। और मैंने उसको इस चीज से रिलेट किया कि जैसे हमने जो जख्म खाए दौर वाले जो कविता था, बहुत सारे लोग जैसे जो आपको गुस्से में दिख रहे हैं या आपको लग रहा है दे आर वेरी टॉक्सिक और मे बी दे आर वेरी एनीथिंग डोमिनेटिंग और एनीथिंग एनीथिंग, हो सकता है वो परिस्थिति वश वैसे हो गए हों, पहला। और या फिर आपको वैसे दिख रहे हो, अंदर से उनका दिल कोमल हो, वो अपने को उससे बेहतर वे में व्यक्त करना नहीं जानते, या उनको अपने आसपास की परिस्थिति संभालना ही सही से नहीं आता। वो है तो कोमल ही, पर जो इतने सारे केओटिक फैक्टर्स, इतनी सारी चीजें हो रही हैं उनके सामने, उनको ऑर्गेनाइज करना, उसको सही से रिस्पॉन्ड करना उनको आता ही नहीं है, उन्होंने सीखा ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे खड़ूस बाप की हम बात करें, हो सकता है वो खड़ूस हमें लग रहा हो सकता है वो दिल से अच्छा हो, कुछ इस प्रकार से। तो आप, तो अपन इसको ऐसा ले सकते हैं कि आई थिंक जब लोगों को ये ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है, और जब लोग हम्म इसको जख्म खाते हैं, एंड पीपल आर नॉट एबल टू सी व्हाट लाइज बियॉन्ड, हम्म इसलिए भी वो शायद जख्मों से भर जाते हैं। और फिर अगर मेरा एक्सपीरियंस कैक्टस का ये है, अगर मैं कैक्टस के अंदर की वो नरमता नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं हम्म। दूसरों को क्या बोलूंगा कैक्टस के बारे में? मैं यही राइट। बोलूंगा कि दूर रहो। मैं दूर यही रहो, बोलूंगा हाँ। कि उसके पास मत जाओ। मैं जी। यही बोलूंगा कि उसके तो कांटों से आपको दुख और दर्द ही मिलेगा। होगा। मेरे को तो कैक्टस में जख्म ही मिला है। राइट। और जी। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, वो बोलेंगे अच्छा, क्या हम्म बात कर रहे हो, आपको कैक्टस से जख्म मिला क्या? तुमने कैक्टस के अंदर वो गद्दी नहीं देखी? डिड यू, वर यू हम्म नॉट एबल टू पील बिहाइंड द थॉर्न्स एंड सी द ब्यूटी एंड द वार्मथ एंड द सॉफ्टनेस दैट इट होल्ड्स? एंड राइट। देन द अदर पर्सन रियलाइजेस कि वाओ, मे बी, बट दिस वॉज माई रियलिटी। वो मेरा राइट। वो मेरा एक्सपीरियंस था, और ये तो जी। मैंने अपना एक्सपीरियंस सबको बांटा।
तो वापस वो जख्म खाए वाली पे हम वापस गए कि जी। वो जो मेरा जख्म था वो शायद सत्य ना हो। शायद अगर राइट। उस जख्म को मैंने थोड़ा और डाइजेस्ट होने दिया होता, थोड़ा और मैं समझता, तो मुझे उस जख्म के पीछे एक नरमता दिखती। और राइट। अगर वो नरमता मुझे एक बार दिख जाती, तो जितने लोगों को मैंने ये बताया कि इसमें कांटा है, शायद उनको मैं ये भी बताता कि कांटा तो है, हम्म। बट उसके पीछे एक बहुत सुंदर, बहुत नरम चीज है जो हम्म। आपके वो घावों को भर दे। तो नलिल, जितनी भी कविताएं मैंने आपकी पढ़ी, पूरी बुक पढ़ी है मैंने आपकी, मुझे ऐसा लगा आपकी कविता पढ़ के कि यू आर समवन हु इज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। इफ जी। आई एम राइट, आई वुड वांट टू एक्सप्लोर दिस एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बताइए कि क्या मैं सही सही बोल रहा हूं? इज देयर जी सम हाँ। स्पिरिचुअल, मैं सिर्फ इंक्लिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इज देयर सम स्पिरिचुअल जर्नी दैट यू योरसेल्फ हैव पर्सनली गॉन थ्रू? इफ यस, आई वुड वांट टू डिस्कस दैट। सो ओवर टू जी। यू। तो मैं बचपन से ही, मुझे लगता है हम लोग अपने अपने, मैं मानता हूँ हम कुछ संस्कार लेके ही आते हैं। तो बचपन से दो चीजें मेरे साथ अभी तक चल रही हैं। मैं जब से 4-5 साल का था तब से ही आध्यात्मिक विषयों पे सोचना, पढ़ना, देखना, पूछना लोगों से और किताबें पढ़ना, ये दोनों ही चीजें बहुत करता था। कब से? वेन यू से बचपन, मुझे कब से? लगता है पांच कब साल से की उम्र आपको? से। अच्छा। 5 साल जी। ये तो बहुत तो एक बहुत ये तो बहुत कम उम्र होती है ना? 5 साल में तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जी। बॉयज बाथरूम एंड गर्ल्स बाथरूम। या जी। दैट्स नाइस। जी। तो वो तो शायद मुझे भी नहीं पता होगा बॉयज और वो, बट हाँ वो तो गुड पता गुड नहीं, वन। बट या तो ये था। और उसके बाद जीवन काफी कठिन रहा, यानी कि बहुत सारे, जो भी एक मेरी उम्र तक के इंसान के साथ एक लाइलाज बीमारी के अलावा जो भी मानसिक रूप से आदमी सफर कर सकता है, वो सब मैंने सफर किया। और बताइए, इकलौता, इफ इट्स मतलब मेरे पॉसिबल। को, या जी श्योर। 10 साल पहले, लगभग 2015 के अराउंड, ओके। मुझे एक मनोरोग, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, बीपीडी। एक मूड डिसऑर्डर है। एक मूड डिसऑर्डर यानी कि मेरा दिमाग बिल्कुल सही से काम करता है, मैं दुनिया को बिल्कुल सही तरह से समझ लेता हूँ, पर जो मेरे मनोभाव है वो काबू नहीं रहते। उसका कारण ये बताते हैं कुछ लोग, जीन्स बताते हैं कुछ लोग, बचपन की परिस्थितियां बताते हैं। तो मेरे जो बचपन था वो काफी कठिन रहा, बहुत ज्यादा। यानी कि उसी जैसे? 5-7 साल की आयु में मेरे साथ यौन शोषण हुआ था, काफी लंबा, चाइल्ड अब्यूज। और उसके अलावा घर में बहुत तकलीफें देखी मैंने, माता पिता का, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखा। और मैं सेंसिटिव था, तो उसके कारण बहुत फील करता था, तो हर चीज को बहुत गहराई से सोच के परेशान भी होता था। और भी अन्य बहुत सारी चीजें जो बहुत पर्सनल हो जाएंगी, जो बताने योग्य भी नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। तो उसके कारण कहीं 15 साल होते होते, जब मैं 2014-15 की बात थी, मैं 15 का हो गया हूँ तब तक, तो 15-16 का जब हुआ, तो अचानक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। जीवन का कोई अर्थ नहीं दिख रहा था। बहुत साल फिर सफर किया, बहुत पीड़ा में रहा। अकल्पनीय पीड़ा थी वो मेरे लिए, मतलब मैं सुसाइडल काफी समय तक रहा। और उसके बाद आ, एक ही चीज जो बाद में मुझे वापस भी लाई, वो ये रहा कि जो मैं आध्यात्मिक चीजों से जुड़ा, उन्होंने इस पीड़ा, इस व्यथा के आगे भी कुछ मुझे दिखा, कि अगर मुझे अपने को ठीक करना है तो इसके आगे कुछ देखना पड़ेगा। और आज जब मैं 26 साल का हुआ हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आज भी, अभी मेरा बस शुरुआत हुआ है साहित्यिक यात्रा का, पर मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जो बहुत उत्कृष्ट हो, बहुत सुंदर हो आने वाले समय में, और उसके लिए प्रयासरत हूँ। पर अब जो भोगने की इच्छा है, यानी कि खुद इंजॉय करने का, अपनी ही सक्सेस को या अपनी लाइफ को, वो आइडिया हट गया है। यानी कि बिल्कुल एक इस तरह से लेता हूँ कि 26 साल का मैंने कहा, अगर मुझे सुखी रहना है तो दूसरों के लिए जीना सीखना पड़ेगा। यानी कि शायद कुछ इस प्रकार से कि 70% में, अ, बहुत सारे मेरे जैसे राइटर्स हैं, जैसे जो मुझे डायग्नोसिस हुआ है, वही डायग्नोसिस अर्नेस्ट हेमिंग्वे को हुआ था, जिन्होंने ओल्ड मैन एंड द सी लिखी। सिल्विया प्लाथ को हुआ था, जिन्होंने जो बेलजार लिखी। उसी तरह से फ्रांस काफका, बहुत सारे राइटर्स थे। मतलब एक जो राइटिंग आपको देता भी है, वो सफरिंग के पॉइंट पे बहुत ज्यादा आती है। तो आप बहुत पीड़ा में होते हो, तो उस समय बहुत अच्छी रचनात्मकता आप कर पाते हो। पर उन लोगों का जो अंत हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, और मैं नहीं चाहता कि उस तरह का अंत मेरा या किसी और का हो। तो मैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी एक ऐसा बनना चाहूंगा कि इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए।
तो एक ऑब्सेशन हटा दिया मैंने लाइफ को इंडल्ज करने का। कोशिश ये रहती है कि एक सैक्रिफाइस के पॉइंट से लिखूं कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूँ टाइप का। हालांकि खुद भी चाहूंगा कि एक अच्छा लिखूं तो मेरे को लोग जाने और ये सब चीजें हों, पर वो मेन मेरा मुद्दा नहीं है, वो नहीं भी हो तो चलेगा मुझे कुछ इस प्रकार से। नलिन, बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने it's not easy to even mention or to talk about such things, because I feel childhood traumas and having these traumas at a very early age, वो बचपन में ही आपकी मोरलेस फ्यूचर की दिशा सेट कर देते हैं। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है। और ये मुझे नहीं लगता कि किसी एक बच्चे को इस चीज से गुजरना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हम्म। मुझे लगता है कि जिंदगी के ब्लोज झेलने का, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, वो मानसिक, मुझे लगता है कि मानसिक और शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो झेल नहीं सकता इन चीजों को। जी। Biologically, they were not meant to handle such complicated traumas of life. And biologically, they were not handled to. So, again, thank you for explaining what has happened to you, and I really wish if it wouldn't have happened this way, because as I said, when such things happen, it more or less makes the course of your future. जो मुझे लगता जी। है, that is why it is very important for parents and for हम्म। people who are around to be very nurturing of टू the गार्ड children. देयर चिल्ड्रन। आज 100. की आज की हमारे देश या मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये स्थिति है कि नहीं, पर ये बहुत जरूरी है कि आप किसी पे भरोसा ना करें जब आप अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अपने सगे भी हो सकते हैं वो जो उनका शोषण करें। आप अपने बच्चों को उन्हीं पे जैसे तो छोड़े ही ना, और वरना उन्हीं की देखभाल में छोड़ें जो उनकी सही में देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत 10 में से मैंने कहीं इंटरनेट में ऐसे आर्टिकल पढ़ा था, तो 10 में से 5 बच्चों के साथ ऐसा होता है। ये सत्य है। मेरे साथ बस, ये सत्य है। और बहुतों के साथ होता है, पर मेरे साथ बहुत लंबे समय तक होता रहा। मेरा एक दो बार वाला नहीं था, मेरा लगातार 2 साल चला वाला था। तो उसका शायद बाद में मेरे पे बहुत असर पड़ा जब मुझे समझ में आया कि क्या हुआ। तो यही चीज है, और मुझे शायद इसीलिए मैं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि जो बातें लोग सुन के भी बोर हो जाएंगे, मतलब बार बार अगर कहीं कहें तो। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसको अब मैं डस्टोव्स्की का मुझे बहुत अच्छा कुछ याद आ रहा है कोट जैसा। वो बोलता है कि आई डू नॉट, मतलब नॉट एग्जैक्टली ये कोट था, पर उसका मतलब ये था कि मैं अपनी पैराफ्रेजिंग किया। सफरिंग का, पैराफ्रेज है कि मैं अपनी सफरिंग का पात्र बनना चाहता हूँ। जो मैंने सफरिंग झेली है उसके लायक बनना चाहता हूँ, कि मैंने जो सफरिंग झेला है उसका कुछ मतलब निकले। तो शायद उसी को अपने साहित्य में, उसी को अपनी चीजों में, अपने एक्शंस में, अपने यस। कर्म में लाने की कोशिश मैं चाहूंगा करूं। पर नलिन, मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना है, एंड इट इज जी। रिलेटेड टू, लेट्स, आई वांट टू एक्सप्लोर अ सिनेरियो. जी। अब अगेन देयर इज अ द्वंद. मैं आपको बताता हूँ, हम्म। अगेन अगेन देयर इज एन ईस्टर्न वर्टिकल, एंड नलिन, अगेन देयर इज अ वेस्टर्न वर्टिकल. राइट। I am born and brought up in an Eastern ecosystem, but I am not a kind of a person who would say कि everything that West has done is for call, है ना? ऐसा नहीं. राइट। मुझे अब, जब जैसे हमारे साथ भी कुछ, so obviously I cannot compare anything that has happened to me even remotely with you, so I'm going to be very mindful about that. हम्म। But if somebody goes to the Western vertical, जैसे you went to हम्म। the spiritual, and I'm assuming the vertical of spirituality was the Eastern vertical, right? The Eastern हम्म। school of thought. राइट। If you look at what is happening in the Western vertical right now, हम्म। for people who have gone through severe trauma, राइट। abuse, and everything, the Western culture teaches them the concept of self-care as against the हम्म। concept of service. राइट। 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 Because
when such things happen to a child when they're young, na, what does that mean? That they were not nurtured. हम्म। Nurturing environment नहीं था for that seed to sprout properly. करेक्ट। So that means nurture was something that was missing. You always, and जिन लोगों में ये, जैसे मैं, I am one of them, I'm one of these people. मुझे लगता है कि जिन लोगों को ढंग से नर्चर नहीं मिला होता है, they have the need to nurture because they want to fulfill that need. चाहे वो अपने फ्रेंड्स को नर्चर करे या एम्पावर करे, चाहे वो अपनी वाइफ्स को करे, बच्चों को करे, उसको करे, they have that need to nurture. But I think that there has to be a balance. This is personally my opinion. I'm not saying anything right or wrong. I feel, मेरा perspective क्या है, because service is good till the time it is not hampering your self-care. करेक्ट करेक्ट। And you are able to self-nurture. जी जी जी, वो भी, हाँ जी। But in your case, I'm going to go even more deep and more psychological. जी। Tell me if I'm wrong, okay? आप एक लेखक हैं. You are an artist. Somewhere down the line, because you have mentioned, you gave the name of a lot of authors who have been through the same thing. Somewhere down the line, this notion exists that with immense pain comes great art. Do you have this fear, or are you aware of this thing that if you wouldn't have had this pain, or if you don't have this pain, you won't be able to convert that into art? नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझता मैं। ऐसा कुछ, बहुत so सारे this ऐसे लेखक is और बहुत irrelevant. नो, मैं बस ये जानता हूँ शायद कि ऐसा नहीं है कि जितने राइटर्स हैं या जितने आर्टिस्ट हैं, दे आर ऑल हैविंग अ वेरी फक्ड अप लाइफ एंड वेरी मेसी लाइफ एंड ऑल द रॉन्ग चॉइसेस। बहुत सॉर्टेड और अच्छे और समझदार लोग और खुश लोग भी होते हैं। Yes. पर इसको मैं ये कोई डिबेट का क्वेश्चन ही नहीं समझता, क्योंकि मुझे बस ये जरूर लगता है कि ये ड्राइव जरूर बनता है एक प्रकार की। Yes. जैसे एक ड्राइव जरूर बनेगा, वो आप दूसरे तरह से भी वो ड्राइव आ सकती है। आप इतने खुश महसूस कर रहे हो कि आप लिखना चाहते हो, या आप इतने दुखी महसूस कर रहे हो कि आप लिखना चाहते हो। So you can It's write in only a about state कि of आप, bliss. You can write in a हाँ, state you of can bliss, write. and you can For write in a example, my state of Guru pain. Swami ji, he must be writing in a state of bliss only, right? Yes. जो हमने 13 months in the Himalayas बोला, वो एक ब्लिस की स्टेट में लिखी गई बुक होगी। और पर ये जो होता है, जब आप दुख से आते हैं तो उसमें एक चीज और होती है कि ऐसा नहीं सिर्फ दुख से होगा, पर आप शायद एम्पैथी के साथ भी लिख पाते हो, या जो Yes. कड़वी सच्चाइयां होती हैं, अगली ट्रूथ्स होते हैं लाइफ के, वो लिख पाते हो। अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग होगा। इवन ये ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात नहीं है, बहुत सारे इंडिया में, मतलब हमारे यहाँ भी लोग ऐसे होंगे जो सेल्फ केयर का वो करेंगे, पर जिस तरह की मेरी मेंटल इश्यूज चलते हैं या Yes. चलते आए हैं, उसमें सेल्फ केयर का कुछ बचा ही नहीं है। मैं अपनी सेल्फ केयर करना, उससे ज्यादा क्या जान सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रीड अ बुक, आई कैन गो टू अ प्लेस, आई कैन मीट अ फ्रेंड, और आई कैन रीड, और आई कैन वॉच अ मूवी, समथिंग लाइक दिस। इससे ज्यादा और कोई सेल्फ केयर होता नहीं है, और वो मुझे फुलफिल ही नहीं करता। वो मुझे फिर वहीं घुसा देता है, उसी उसी एबेस में। तो मैं सोचता हूँ अब दूसरों के लिए करके करना है, और जब दूसरों के लिए कर पाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम देयर फॉर अ फ्रेंड who is in trouble, I forget my own pain. If I am able to help a needy who is really suffering, I'm able to have a broader perspective कि यार मेरा दुख कितना कम है, देखो ना कितना सच में दुख है दुनिया में। मेरा भी दुख है, चलो अच्छी बात है, पर दुनिया में सच में जो बुद्धा ने बोल गए, गौतम बुद्ध की, ये संसार दुखालय है, वो कहीं ना कहीं सही है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वो एब्सोल्यूट होगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सुखी रह पाते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक it's totally subjective, and there is no hard and fast rule and one shoe fits all वाला वो नहीं होगा। So one size. I think what happens, and you are absolutely right. Mhm. And again, thank you for sharing this, Nalin. I think sometimes when I am also deeply hurt, because though I have been, I've had a relatively good middle class, normal childhood. I also recently came to realize, because of certain instances in my life, that I have also never been nurtured by anyone. Mhm. Mhm.
So when somebody pointed out this thing to me, that Raghav, why do you have this nurturing nature? Why do you हम्म. have this want and desire to empower others? Because you, what you did not get, you want to give. Do for others. And maybe that is your way of nurturing yourself when you हम्म. nurture others. So, Correct. so in a way, when you help people, Nalin, which I हम्म. know you do, when you live for others, maybe that is your self-care. हाँ, डेफिनेटली. ये बात मुझे जब मैं 20 साल का हुआ था, मुझे समझ में आ गई थी कि हम इस दुनिया में कोई भी काम करें, कुछ भी करें, अगर कोई नॉन प्रॉफिट चला रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई बुरा काम कर रहा है, एवरीबडी डज एवरीथिंग 100% फॉर देमसेल्फ. पर उसमें अगर आप वो काम अच्छा हो जिससे दूसरे का हित हो रहा हो और उसमें अपना दर्पण देख लो, अपने को देख लो, तो वो बेहतर काम कहा जाएगा. यानी कि नार्सिसिस्टिक होने से अच्छा एल्ट्रुइस्टिक होना होगा. यानी कि आप Absolutely. सो पर आइदर वे दो अप्रोच एक ही है, अपने को पूरा करने की कोशिश. एक बहुत, अगर बहुत जो पैसे बचाता है या बहुत पैसे दूसरों पे ही दे देता है, दोनों एक ही चीज करना चाह रहे हैं, खुद को संतुष्ट करना चाह रहे हैं. और सबका अलग अलग है, क्योंकि मैं ज्योतिष भी सीखता हूँ और चीजें भी करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ लोग आते हैं. ठीक है, मतलब जो चार्ट्स बन के आएंगे. Hmm. और वैसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग देखे, तो अल्टीमेटली वी आर ऑल सीकिंग वन थिंग, आवर ओन फुलफिलमेंट. Hmm. द अप्रोच इज डिफरेंट. और मी आई थ्रू ऑल दीज इयर्स ऑफ टर्मोइल और इतना सारा पढ़ के और बहुत सारा चिंतन करके मुझे समझ में आया कि मैं सिर्फ तब पूरा पूर्ण महसूस करूंगा जब मेरा जीवन दूसरों के लिए हो पाएगा. अपने को पूर्ण अपने आप नहीं कर पाऊंगा, उन रिश्तों में भी नहीं कर पाऊंगा जो हम सोचते हैं कि हमें मिले तो हम भोग लें, फिर हम खुश हो जाएंगे. तो ऐसा हो नहीं पाता मेरे साथ, मैं हो नहीं पाता हूँ ऐसा. क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको भी पूर्ण करने की कोशिश करी, जो कुछ ऐसे जी. आपके जी. रिलेशनशिप रहे हैं, नॉट जस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप, एनी काइंड जी. ऑफ जी. एसोसिएशन दैट यू फेल्ट हम्म. की yes, this was really fulfilling and this has really somewhere been what I really wanted. Has that been there? हम्म. तो पहले मेरा पूरा पूरा जीवन ही बहुत अकेला बीता. और पिछले 2-3 साल में ही ऐसा हुआ कि मेरे कुछ मित्र ऐसे बने, कुछ ऐसे लोग बने, एल्डर्स बने जो मेरा बहुत हित चाहते हैं, और जिन्होंने मुझे प्रेम दिया, पर वो घर से नहीं थे, बाहर से थे. तो बाहर मैंने बनाए वो संबंध, और उनकी वजह से एक सपोर्ट मैकेनिज्म बन गया मेरा. पर हाँ, अगर ये चीज 4 साल के नलिन के साथ हुई होती तो वो नरिश फील करता, और उसके दिमाग में वो सारी चीजें एक हैप्पीनेस का एक जनरली ही प्री डिस्पोजिशन बना देते हैं. यानी कि वो खुश रहना बहुत आसानी से सीखता. इसीलिए मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि बच्चों को आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, आईआईटी, ये सब तो ठीक है, पर उनको सबसे पहले खुशी की तालीम देनी जरूरी होती है कि वो खुश कैसे रह सकते हैं इस दुनिया में, कम से कम. क्योंकि मतलब इट्स माय पर्सपेक्टिव, नॉट एनीथिंग कि सबको ऐसे करना है. तो जब ये लोग मेरी जिंदगी में आए तो एक सपोर्ट सिस्टम तो बना, पर मैं भरा हुआ महसूस नहीं कर पाया. आई कुड नॉट फील complete in me. Still, there was some seeking, searching, somewhere I wanted to go. तो ये जद्दोजहद शायद मेरी लगे भी रहे, क्योंकि मेंटल हेल्थ कंडीशन है मेरी. पर उसको निगेट करने के लिए या बहुत हल्का करने के लिए, कम करने के लिए, मैं ये कहीं कहीं ना कहीं अपनी दर्द से उत्पन्न ऊर्जा को सकारात्मक रूप में लाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ. पर ये हर किसी के लिए भिन्न होगा, सब्जेक्टिव है, क्योंकि सारे लोग डिफरेंट हैं, कस्टमाइज्ड. मुझे लगता है खुद से ही पूछ के पता करना पड़ता है कि मैं कैसे पूरा हूँगा. और सारे तरीके अपनी अपनी जगह सही हैं. तो बस मुझे यही लगता है. और मैं ये कहीं ना कहीं ये जानता भी हूँ आध्यात्मिक रूप से कि कोई भी रिश्ता, चाहे वो प्रियतम से हो, आपका माता पिता से हो, या आपके बच्चे से हो, वो रिश्ता भर नहीं पाएगा आपको. कि आप कहो कि अब मैं पूरा हो गया, कहीं ना कहीं शायद एक अधूरापन रहता ही है. एक थोड़ा उससे भी नहीं मिलेगा, रिश्तों से शायद नहीं मिलता. पर हाँ, जब हम कहीं ना कहीं उस रूप में करते हैं किसी के लिए कुछ, जहाँ कुछ चाहिए ही नहीं होता, और उनके लिए नहीं कर पाते हम, जो हमारे से संबंधित होते हैं, उससे हम आकांक्षाएं रखते ही हैं, आशाएं रखते ही हैं. और उनके लिए जो जिनसे हम रख ही नहीं सकते, स्ट्रेंजर्स की हम हेल्प कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, करके आप छोड़ आए, और आपको स्वर्ग नहीं जाना है उस पुण्य को कमा करके, आप बस कर रहे हो क्योंकि आपको कहीं जरूरत दिखी अपनी. तो वो सही में करता है, यार आज मैं कुछ अच्छा करके आया, शायद कुछ ऐसा. So basically, so there is a lot of compassion in you. There's a lot of warmth in you, right? And वो हाँ. चाहे वो जी. जैसे भी आई, चाहे वो जी. जैसे भी परिस्थितियों से आई, हम्म. because I have been through some very dark phases of my life.
और मैं recently I started writing about my feelings and everything. हम्म Whilst I was writing, I realized that कि ठीक है, going through dark phase, I gained something, and that was a true compassion. हम्म Compassion in a way कि it's okay. मतलब मुझे ये हम्म रियलाइज हुआ कि कोई सही गलत नहीं है. मे बी, हम्म अब मुझे नहीं पता कि ये भी सही है कि गलत है, बट हम्म कहीं मुझे लगा कि इट्स ओके. हम्म, एक्सेप्टेंस एंड कंपैशन. क्योंकि जी फिर मुझको ये भी लगने लग गया था कि अगर मैं ज़्यादा उस पर सोचूंगा या ज़्यादा अपने पे लूंगा तो शायद कहीं ना कहीं वो मेरी हेल्थ को डिटोरेट करेगी. तो मे बी वो वो तो एक करेगा। वो एक फियर, हम्म। वो एक फियर है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसे आपकी सेहत को खराब कर देते हैं। नहीं, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ यार. It's a very deep question. Let's see if we can हम्म answer. हम्म So many sages and saints in this country, so हम्म many gods, so many religions, so many puja, part, arti, हम्म varti, and all that jazz. Yet हम्म there are lot of people who are suffering. हम्म मैं स्पेसिफिकली मेंटल इलनेस की बात कर रहा हूँ. हु इज वेरी स्पिरिचुअल एंड हु हैज यू नो हु अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, यू नो हु इज. कभी प्रश्न उठता है आपके माइंड में कि इस भूमि जी में क्यों ये, अगर मैं एक मेंटल इलनेस, अगर मैं मेंटल इलनेस की बात करूं, प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, हमें पता नहीं है. पर आध्यात्मिकता भी हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं. माई हम्म ब्रेन इज लाइक कि यार ये तो हम्म इक्वेशन ही गलत है, ये तो कुछ फिट ही नहीं हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग. तो मैं जानना चाहता हूं कि ये, अगर इस भूमि की हम बात करें, या अगर हम अपने एक क्षेत्र की बात करें, या अगर हम अपने नॉर्दर्न स्टेट की भी बात करें, mental illness specific, why do you think that this is so prevalent? Where do हम्म you think people are going wrong? I want to understand your हम्म। perspective and take on that. मैं जो इस पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग और काफी बड़ा टॉपिक बन जाएगा, बट मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, बहुत सारे ऐसे देश हैं देर इज नो रिलीजन, जहाँ पे, जहाँ कोई रिलीजन नहीं है, जहाँ कोई भगवान नहीं है, जहाँ पे शनि भगवान को तेल नहीं चढ़ाते, या फिर पूजा पाठ और पानी में वो सब नहीं करते, आरती। और वो लोग काफी हमसे, अगर उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स देखें जो यूएन के लिस्ट आती है, वो हमसे बहुत ऊपर भी हैं। बिल्कुल. बड़ी कंट्रीज भी और छोटी कंट्रीज जैसे फिनलैंड विनलैंड, वो तो शायद टॉप करती हैं इसमें, कि वो लोग बहुत खुश रहते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। इसमें एक दूसरी चीज भी है, मेंटल हेल्थ अगर अब्यूज के कारण हो रहा है, मेंटल हेल्थ अगर डिसफंक्शनल फैमिली के कारण हो रहा है, अगर कुछ जेनेटिक है तो वो बात अलग हो जाती है, वो तो शायद सब जगह होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो गॉड, जिसको हम एक एंटिटी की तरह ले रहे हैं, उसको भी अपने विश फुलफिलिंग एंटिटी बना दिया है, कि हमारा भगवान ये कर देना। जहां जहां हमारी कन्वीनियंस हो, जहां जहां हमारा हमारा काम बन रहा हो, वहां पे हम उसको कुछ प्रे कर देंगे, उसकी पूजा कर देंगे, कुछ नारियल चढ़ा देंगे, कुछ और कर देंगे, वहीं पे हम दान कर देंगे, वहीं व्रत कर देंगे। उसके पीछे का एक तो हम गहरा अर्थ नहीं समझते, लोगों के पास ना उतना समय है, ना उतनी समझ है। और लोग सोचते हैं सच में कोई ऐसा तोलने वाला ईश्वर बैठा है जो करेगा, या कोई बचाने वाला सेवियर है। मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि ऐसा ईश्वर है ही नहीं। हम्म. वो मानने की बात नहीं है। अगर होता तो, जैसे अगर कोलकाता में रेप कांड हुआ, वहां पे दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी है। अगर आप अगर आप माँ काली को या किसी को एक मार्ग के रूप में लोगे, तो आपको काली माँ प्राप्त होंगी। काली माँ से आपके दर्शन भी हो सकते हैं, सब हो सकता है, तंत्र में ये सब चीजों में होता है। मार्ग के रूप में वो बदलता है आपको, वो परिवर्तित कर देगा। पर आप सोचो कि मैं काली माँ को बस एक दिया जला दूं और वो मेरा आईएएस निकाल देंगी, या फिर मुझे फॉर एग्जाम्पल राइटर बना देंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। या किसी चीज से बचा देंगी, अगर मेरे साथ कोई शोषण कर रहा है। अगर जैसे आपने बोला कि औरतों के लिए आज भी ये कंट्री सेफ नहीं है, इवन घरों में भी डोमेस्टिक वायलेंस हर जगह हो रहा है। तो औरतें ये सोचे कि हम भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे तो मेरे पति को अकल आ जाएगी, या एक पति सोचे मेरी पत्नी को अकल आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि पुरुषार्थ तो सारा हमारा ही है। वो, मैं ईश्वर को एक मार्ग मानता हूँ। ईश्वर ईश्वर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक, जहाँ पे एक ऐसा आयाम है, जहाँ पे, जिसको हम सच्चिदानंद बोलते हैं, अगर आप अद्वैत के हिसाब से चलो, जहाँ परम शांति परम सुख है। पर आप उसको उस तरह से लोगे तो हम लोग कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हैं। और हम लोग पता नहीं इसका ईगो रखना ही क्यों चाहते हैं, कि एक जगत गुरु हैं या वो हैं। सब जगह की अलग अलग चीजें, बहुत इंडिया में ऐसे लोग हैं, मेरे परिचित ऐसे लोग हैं, जिनको गॉड बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, एंड दे लिव अ बेटर लाइफ देन दोज हु आर वेरी, जो बहुत विश्वास करते हैं, बहुत पूजा पाठ रिचुअल्स करते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि जो ज्यादातर आध्यात्मिक होता है,
जो ज्यादा रूप में होगा, वो शायद दो प्रकार के लोग ज्यादा होंगे। जिसने एक ऐसा जिसने सब कुछ पाया जीवन में और सारे रंग फिर भी फीके लगे, सारे रिश्ते भोग लिए, सारी सफलताएं देख ली, फिर भी कुछ कमी लगी। और शायद ऐसा भी होता है जो कहीं ना कहीं टूटता है बहुत बुरी तरह, दूसरा इंसान। अब उसको चाहिए मैं टूट रहा हूँ दुनिया में कहीं से भी, चारों तरफ से एक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह में फंसा हूँ, तो अब मेरी मृत्यु भी निश्चित है मान लीजिए, और कोई कृष्ण भी बचाने नहीं आएंगे मुझे। तो अब मेरे जीवन का मैं क्या अर्थ निकालूं, मैं कैसे उस परम को प्राप्त करूं। तो ये है, मतलब इसमें हमें दो बाइफर्केशंस करने पड़ेंगे। हम लोग जो कॉमन जनता मुझे इवन न्यूज में वो दिखती है, वो बहुत मिसगाइडेड दिखती है। Yes. हम लोग एक एक लेबल में रहना चाहते हैं कि जगत गुरु ये वो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हमें हमें इसलिए एक्चुअली चाहिए भी इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास दिखाने के लिए और कुछ है नहीं। जैसे अगर मान लीजिए एक लड़का है जो पढ़ा लिखा नहीं है, या लड़की है कोई भी, अगर उसके पास सुंदरता के अलावा कुछ दिखाने के लिए नहीं, तो सुंदरता को सब माना जाएगा। Hmm. ठीक है। पर अगर वो पीएचडी भी है, मान लीजिए वो एक वैज्ञानिक है, तो वो अपनी सुंदरता नहीं दिखाएगी फिर, वो शायद एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। उसके बाद और बड़ी चीजें होंगी दिखाने के लिए। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है इसको, हालांकि दिस इज जस्ट अ वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी एक कंटेक्स्ट में बोला गया ओपिनियन। हाँ, एक तरह से है भी हम जगत गुरु, क्योंकि हमारी जो फिलोसफी है उससे ज्यादा डेंस फिलोसफी शायद हुई नहीं। सब 100%. कुछ है हमारे जितने भी आयाम, एक ह्यूमन, मतलब एक मानव तक, मानव के लिए जितनी भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं उस ट्रांसेंडेंटल लेवल पे, वो हमने एक तरह से बोल दिया गया है। जितना भी पॉसिबिलिटी है वो सब बता दी गई है। आपको यहाँ पे ऐसा भी मिलेगा, यहाँ पे तंत्र के ग्रंथ भी मिलेंगे जिसमें आपको अगर लक्ष्मी माँ की दर्शन करने हैं वो भी मिलेगा। और अष्टावक्र गीता भी मिलेगी जिसमें ये लिखा है कि सारे जो भगवान के रूप हैं वो सिर्फ कल्पना है, वो सब फॉल्स हैं। आइदर वे इज राइट। अगर आपको आपको बेसिकली अपना हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपकी किस तरह से चेतना जाती है। मैं खुद भी जो हूँ थोड़ा ज्ञान मार्गी टाइप का हूँ, यानी कि भक्ति और तंत्र और ये सब चीजें मेरी पीछे चलती हैं। समझ गया. ज्ञान मार्ग वाला टाइप का हूँ, तो मैं देखता हूँ क्योंकि मैंने कई बार भगवान को पुकारा। मेरे जब 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 मेरे घर में परेशानियां होती थी, और मैंने सुना, ऐसी बहुत सुनने में आता था कि भगवान शिव के जब वहां जाओ तो नंदी के कान में बोलने से चीजें ठीक होती हैं। तो मैंने नंदी के कान में 6-7 साल की उम्र में बोला था। मैंने कहा घर में बहुत परेशानी है, ठीक कर दो, फिर मैं ऐसा ऐसा करूंगा। नहीं ठीक किया। और पता है, मैंने आपको, मैं अभी बनारस गया था तो वहां मैं बीएचयू के वहां पे शिव मंदिर गया, तो वहां भी मुझे नंदी दिखे और मुझे 20 साल पुरानी बात याद आ गई। मैंने नंदी के कान में कहा, क्या सत्ता है तुम्हारी, कुछ तो ठीक किया नहीं तुमने, पूरा जिंदगी ऐसी रहा। ठीक है। तो बहुत पुकारने पे भी कोई भगवान बचाने नहीं आता। ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हम लोग, मतलब कहीं ना कहीं मैं इसका रूट कॉज मानता हूँ मिसगाइडेड है, हमें नहीं समझ है। और सारा ज्ञान सबके लिए होता भी नहीं है। जैसे दो तरह की बातें होती हैं, मतलब, तो ये मतलब काफी बहुत ब्रॉड टॉपिक है कहने के लिए। Yes. पर हाँ, तो यहीं पे वो करता हूँ। आपका अभी आध्यात्मिक जर्नी कंटिन्यू हो रही है ननिल? आप जी, उस वो पथ तो पे, निरंतर है। वो निरंतर है, और जी आपको ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि इस आध्यात्मिक जर्नी से आपको बहुत ज्यादा, there has जी। been profound change in you. हम्म। This has something which has really saved you. You know, this has something. इट हैज सेव्ड मी, आई कैन नॉट से कि इट हैज चेंज मी। मुझे लगता है हर हम लोग प्रवृत्तियां तो बहुत मुश्किल होती हैं जो हम संस्कार लेके आए होते हैं उनको बदलना। पर ये जरूर होता है कि जब बहुत सफरिंग भी होती है तो उसका एक दूसरा वो भी देख पाता हूँ मैं, Yes. दूसरा दृश्य भी देख पाता हूँ कि, और मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया है इसने मुझे, अध्यात्म ने। और यही चीज है जो मुझे सेव की है कहीं ना कहीं। Makes sense. ठीक है. हम्म। चलिए, Nanil, now what we'll do, so we have हम्म। broadly now covered two segments. Okay. हम्म। In the first segment, we have spoken about your book, we have celebrated your book. In the हम्म। second segment, we have dive into your childhood, and we have related to with the book as well, and we have gotten into some very uh, important topics. राइट। Now we have to dive into the world of literature. हम्म। We have to dive in the world of Hindi literature. We want to हम्म। dive in the world of what is happening in Hindi publishing. We want to dive in ओके। the world of where we are and where we are, why we are not where we should be. Okay? हम्म। We'll take some very interesting questions. Okay? Okay. पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, and this is coming out of ignorance. I'm very open. हम्म। This is coming out of हम्म। ignorance. हिंदी ज़्यादा अच्छे से लिखना नहीं जानता मैं, और ये बहुत जी। शर्म की बात है मेरे लिए. मैं अपने आप को इसलिए एजुकेटेड नहीं बोलता हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, हम्म। नॉट समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ नाउ. राइट। बचपन में अकल नहीं थी.
आई एम ऑल्सो इनटू, हम इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश ये हम्म। देखते हैं। हिंदी किताबों का तो सेक्शन क्रॉसवर्ड पे भी जाओ तो ऐसे कोने में होता बहुत है कि कम, वो बहुत मिलता कम। भी नहीं है। बहुत कम। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम्म। why is it that in a nation like India, हम्म। where there are so many regional languages, राइट। हिंदी इसी देश में बोली जाती है और किसी देश में बोली भी नहीं जाती है, इतना साहित्य है, क्यों? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू द करंट स्टेट of Hindi literature and publishing. Why is it so difficult for somebody like us to discover Hindi books? A. हम्म। Why the frequency and why the number of books that are getting published in Hindi are not as like in English, or even if they are, why I'm not getting it? Why हम्म। there are not a lot of non-fiction books getting written in Hindi? Only हम्म। translations are happening. मैं कोर समझना चाहता हूं कि हिंदी पब्लिशिंग इंडस्ट्री, साहित्य, लिटरेचर, आपके पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आप लेखक हैं, if you first you can say your perspective, then you can talk about certain facts if you're aware of them, but I want to explore this vertical. ये बिल्कुल सच बात है कि बहुत दुखद स्थिति में है हिंदी। आज की जो हिंदी है या जो प्रकाशन हो रहा है वो बस अपने को किसी तरह बनाए रखने का कोशिश कर रहा है। वो ग्रो या फिर कोई पाइनियर वाला काम नहीं कर रहे हैं। Hmm. दे आर जस्ट ट्राइंग टू सस्टेन वट एवर इज लेफ्ट। आपको यकीन नहीं होगा पर मैं जैसे पत्रिकाओं के लिए भी कहानियां भेजता हूँ या कुछ करता हूँ, तो बहुत कम हिंदी पत्रिकाएं बची हैं। और कोई भी पत्रिका शायद आज से 20-30 साल पहले पत्रिकाएं आपको कहानियां कविता पब्लिश होने के पैसे देती होगी थोड़ा। कुछ नहीं है आज उतना, उनका वो बिजनेस ही इतना चल पा रहा है कि वो अपने को ही संभाल लें, वो किसी लेखक को नहीं दे पाते। पहला। दूसरी चीज, वेस्टर्न एजुकेशन इतनी ज्यादा हुई कि हम लोगों को आदत ही वेस्टर्न इंग्लिश की हो गई। हिंदी बोलने तक रह गई। जब हम व्हाट्सएप में लिख रहे हैं इंग्लिश में लिखेंगे, कीबोर्ड में टाइप करेंगे इंग्लिश में टाइप करेंगे, किसी को आएगा ही नहीं तो जो पढ़ने का है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, सोशल मीडिया ये सब जो चीजें आई तो लोग वैसे ही कम पढ़ते हैं। ठीक है, और Hmm. इसका एक कारण ये भी बनता है कि जो जितनी भी मास्टर पीसेस हैं वो अब मुझे ऐसे दिखती नहीं। आधुनिक ज्यादा प्रकाशन में कोई मास्टरपीस हिंदी का उपन्यास आ रहा हो या कविता आ रही हो बहुत कम। और अगर उस तरह का, जैसे अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हो या उस तरह की कोई कविता शैली आज ठीक है। लिखें तो वो बिल्कुल डेड हो चुका है। उस तरह की Hmm. हिंदी कोई पढ़ेगा ही नहीं। Hmm. मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत सरल तरह की हिंदी रखने का, पर लोग कह रहे हैं बहुत टफ है। मेरे ही Hmm. दोस्त और मेरे ही जानने वाले कह रहे हैं बहुत टफ हिंदी है। जबकि बहुत सरल लिखी है आपने और हाँ। बहुत ही डाइजेस्टेबल है, जस्ट हाँ। जस्ट वन पॉइंटर, या प्लीज तो कंटिन्यू। उसमें आपको अगर कोई सोचे कि हम छायावाद का पढ़ेंगे या किसी और का, जो पहले के लिटरेरी मूवमेंट्स थे हिंदी में अच्छे उपन्यास और अच्छी कविताएं उस रूप की जो पहले उस उतने उत्कृष्ट रूप की मेरे को नहीं दिख रही है। बहुत कम प्रकाशन है जो आज के समय में प्रॉफिटेबल है हिंदी में। हम्म। हम्म। जितने भी पुराने प्रकाशन थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना ठीक है। चाहूंगा, पर वो अब प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो राइटर्स को पे ही नहीं कर पा रहे हैं। पूरा कल्चर ही इंग्लिश ओरिएंटेड हो गया है। लोगों ने अब हिंदी में पढ़ना भी बंद कर दिया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सब पढ़ाया ही इंग्लिश में जा रहा है। अगर बिल्कुल। हमारी 10 में से 9 टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश की होंगी तो हम इंग्लिश को ही यूज टू होंगे ना। हमने कोई हिंदी मीडियम में जो पढ़ा नहीं था, हम सब इंग्लिश एजुकेटेड फॉर एग्जाम्पल थे, तो हम 10 में से 9 किताबें इंग्लिश में पढ़ते थे। फिर बिल्कुल। हमने इंग्लिश में ही फेसबुक चलाया, इंग्लिश में ही हम यूट्यूब करते हैं, सब कुछ इंग्लिश में ही हो रहा है हमारा। तो हिंदी से छूटता चला गया। आज का ये है कि आज का यूथ हिंदी पढ़ नहीं पाया था बकायदा। अगर उनको की और की में डिफरेंस बोलो तो 10 में से 8 लोगों को नहीं आ रहा है आज के जमाने के लोगों को। है और है में फर्क नहीं पता चल रहा है, जो बहुत ही सरल चीजें हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया, और डिस्कवरेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि सच में उस तरह की किताबें ही नहीं आ रही। सच बात है, ज्यादातर ट्रांसलेशन ही आ रहे हैं। सच बात है। और जो लेखक लिख सकते हैं हिंदी में वो इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि उनको मुनाफा ही इंग्लिश में दिख रहा है। उनको मार्केट ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है कि इंग्लिश में लिख करके ही फायदा होगा। मेरे जानने में कोई परिचित हैं जिन्होंने हिंदी से लिखने के बाद इंग्लिश में लिखना शुरू किया, इसीलिए क्योंकि हिंदी में कोई पढ़ ही नहीं रहा है। पत्रिकाएं कोई अब पढ़ता नहीं है। इसके जो सोशल मीडिया ये सब चल रहा है, ये तो इंस्टाग्राम रील्स, इसकी वजह से लोग डाइवर्ट हो गए, ये बात तो सही है। पर वास्तविकता ये है कि अब लोग कल्चर्ड ब्रेन कहाँ रह गया है। लोग पढ़ते ही कहाँ हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। बहुत कम है, 10 में से 8 लोग नहीं पढ़ते हैं। और फिर वो सोचते हैं हम एजुकेटेड हैं, उनको लगता है हमने भूगोल पढ़ लिया या इतिहास पढ़ लिया कि तुगलक कब आया था इंडिया, तो हम बहुत पढ़े लिखे हो गए। उनको जीवन का बहुत सारी चीजों का तो आयाम ही नहीं पता होता जो साहित्य भी देता है। अगर जैसे पुराने जो लेखक थे
मतलब मुझे अभी तक, मेरे को भी ढूंढने में आज के आधुनिक लेखक नहीं मिले ज्यादातर। मेरे को जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है व्यक्तिगत, वो ये था कि बहुत सारे आइडियाज तो कॉपीड है इधर उधर के, राइट। बहुत सारे वो हैं, और हम कुछ ओरिजिनली नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं जैसे पुराने अगर लेखकों को आप देखिए, जैसे अगर इंडिया के जो लेखक हैं ज्यादातर, और जो टॉप लेखक हैं ज्यादातर, ठीक है, वो बाहर जो जो इंग्लिश में लिखते हैं वो फॉरेन एजुकेटेड या फॉरेन सेटल्ड है। इंडिया में लिखने का ट्रेंड भी कम ही दिख रहा है मुझे। मेरे को 25 साल में, मैं मतलब पूरे इतने साल जिया, मतलब सॉरी, बट द होल थिंग, इतने समय में मुझे कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला नहीं मिला अपने पूरे सर्कल में, दूर दूर तक। हल्का फुल्का पढ़ने वाला, कुछ पॉपुलर किताबें जो हर जगह दिख जाती हैं, वो हल्का फुल्का पढ़ के वो अपने को रीडर बोलते हैं। तो बहुत दुखद स्थिति है, इसीलिए मैंने इस किताब के भी पहले, जो सबसे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा था, कुछ शब्द मात्र भाषा को, उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि हिंदी को वापस लाने की जरूरत है। तो मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ, अगर मैं इंग्लिश में भी लिखूं तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी अच्छा लिख लेता हूँ, पर मैं हिंदी में कुछ उत्कृष्ट लिखने का अपने रूप से प्रयास करना चाहूंगा हिंदी के लिए। ये मेरा प्रयास तो रहेगा। ननिल क्या कर सकते हैं अगर हम चाहें कि हिंदी की हम्म। पुस्तक ही नहीं, इसमें इस तरह की नॉवेल्स बाहर आए, चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुआ है, प्रयास काफी हुआ है। जैसे मुझे याद है कि कुछ हिंदी ओरिएंटेड लिटरेचर फेस्टिवल्स भी आए हैं, और जी। ऐसे काफी सारे ऑथर्स हैं जिनकी खासकर जो मलयालम बुक्स है, फिक्शन, हम्म। मलयालम बुक फिक्शन वो बहुत बेस्ट लिख रहे सेलर हैं, हो जाता है, हाँ वो हाँ, बेस्ट वो सेलर हो बिक रहा जाती है। है। तो यही मैं जानना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं है कि अपने पास शायद ओरिजिनलिटी ना हो, मैं मानता हूं कि अब तक नहीं है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए, दैट जी, वी आपको एज अ, पता है, जब मैं हाँ, मुझे लगता है इसके लिए एक चीज तो सबसे जब ये जरूरी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हमें वापस हिंदी को एक इम्पोर्टेंट चीज मानना सीखना पड़ेगा। कितना सुंदर लगता है जब कोई शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करे, राइट, मतलब एक बात करे या वार्तालाप करे। वी ट्राई टू मेक इंग्लिश आउट ऑफ एवरीथिंग। हम हर चीज में एक इंग्लिश बना दें या इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। शुद्ध हिंदी में बात करने का एक अलग आनंद है। हम उसमें भी क्या होता है, बहुत सारी अन्य भाषाएं और अन्य कल्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब उर्दू भी आ गया तो हम पुनः को फिर बोलेंगे, पुनः तो। पर अगर आप शुद्ध कोई भी भाषा पढ़े तो उसका भी एक आनंद है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि क्रॉस कल्चर या क्रॉस चीजें होनी नहीं चाहिए, वो ठीक है। अब जैसे पत्रिकाओं की बात है, तो एक, आपको पता है हिंदी के जितने भी साहित्यिक अवार्ड्स होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, ये अवार्ड्स भी देते हैं तो बहुत कम धनराशि मिलती है, बहुत ही कम। जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज में गीतांजलि श्री को मिला होगा तो 25-50 लाख रुपए मिले होंगे, आई थिंक, या उससे ज्यादा। नोबेल प्राइज जब मिलता है तो वो तो करोड़ों में होता है, राइट। अगर किसी हिंदी अच्छे बड़े प्रकाश उसके अवार्ड की बात करें तो वो कुछ हजार, चंद हजार या 1-2 लाख रुपए होता है। बहुत, वो भी किसी को एक को मिलता है पूरे साल में। तो बहुत बुरा हाल है। और प्रकाश, जब हम पत्रिकाओं की बात करते हैं तो ऐसी पत्रिकाएं आनी चाहिए जो लेखकों को, पहले तो अपनी पत्रिकाओं को खुद एडवर्टाइज करें, उनको मनोबल बनाए लेखकों का, जो कहें कि आप लिखो, हम आपको पैसे देंगे इसके लिए, वो होना चाहिए। और हिंदी को नॉर्मल ट्रेंड में लाने की जरूरत है। हिंदी में लोगों को अपनी चीज से शर्माना नहीं चाहिए, लोग शर्माते भी बहुत हैं। उनको लगता है हमें इंग्लिश ना आए तो चले, इंग्लिश ना आए तो नहीं चलेगा, हिंदी ना आए, थोड़ा कम बोलते हैं हिंदी, थोड़ा समझना है, चल जाएगा। और ये सबके अंदर आ गया है, वेस्टर्न आइडियाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए हम, जरूरत से ज्यादा। अच्छी चीजें हैं वहां से, बहुत कुछ है लेने के लिए। पर ये बात सत्य है कि हम अपनी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज कोई कहे कि अध्यात्म में ही हम कहें, तो कोई गीता प्रेस गोरखपुर की किताब एक ला करके पढ़ नहीं पाता है। उनको हर चीज ट्रांसलेटेड चाहिए, उनको कोई मान लीजिए वेद पुराण उपनिषद कुछ भी पढ़ना है, दे ऑल वांट ट्रांसलेटेड। बट अगर हम खुद कल्चर से जाएंगे तो वो डेड ही हो जाएगा, फिर खाली ऐसा ना हो कि भाषा खाली बोली रह जाए। आई वो तो थिंक पढ़ता है। स्पिरिचुअल बुक्स का तो ऐसा हाल है कि किसी ने भी ओरिजिनल हम्म। मटेरियल नहीं पढ़ा है, एंड दैट इज व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट कोटिंग दीज बुक्स इन एयर। अरे हम्म। पता है, दिस मेंशन गीता, ओ दिस रिटन इन आर शास्त्र, रिटन इन वेदास, एंड यू हम्म। आस्क देम द श्लोक, you हम्म। ask करेक्ट। them कि give me a reference from where you have read this thing, and what you have read हम्म। just quote it na, they won't be able to quote it. And I am one of those people, I have, because मुझे संस्कृत नहीं आती, इनफैक्ट मैं हिंदी हम्म। भी पढ़ूंगा तो मेरे को थोड़ा सा लगेगा कि यार ये तो एफर्ट है। सो आई एम हम्म। अ विक्टिम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। आई थिंक इसलिए हम लोग अपनी भी स्पिरिचुअलिटी को भी, आई थिंक दैट इज अ रीजन, ये हमारे सेजेस ने भी रियलाइज करा कि यार हिंदी में तो कितनी ऑडियंस को पकड़ लूंगा मैं। हम्म। और अगर, और एक एक और चीज जो मुझे बहुत दुखद लगती है, जिन लोगों ने हिंदी ऑडियंस पढ़ी हुई है, अगर आप यूट्यूब पे वो देखो कि किस तरह के लोग आते हैं, आपको खुद बुरा लगता है।
आपको लगता है कि अच्छा अगर मैं हिंदी में बात करूंगा तो मुझे इस प्रकार की ऑडियंस मिलेगी जिनको आज भी मैं ये हम्म। बोल सकता हूँ कि समोसे के साथ तुम हरी चटनी खाई थी, तुम लाल चटनी खाओ। हम्म। राइट। सो आई थिंक दिस इज वेरी डीपली हम्म। डीपली एक कोलोनाइज्ड आइडिया है। तो हमारे हम्म। सेजेस और सेंट्स भी यही तो बोलते हैं कि नहीं, इट्स बेटर दैट वी टॉक इन इंग्लिश, वी हैव एलीट फॉलोअर्स हु देन कैन देन हम्म। स्प्रेड आवर फिलोसफीज एंड मे बी हम्म। शायद इफ यू टेक दैट रूट। हम्म। आज अगर ओम स्वामी जी हिंदी में बोलते हैं तो वो बहुत एक अच्छे तरीके से बात करते हैं। ही यूज हम्म। गुड वर्ड्स बिकॉज नाउ ही हैज एन ऑडियंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। हम्म। And it's not just with Om Swami, it is with everyone. It is with Sadhguru. Sadhguru to only speak with in English and other people. तो ननिल मैं जानना चाहता हूं कि अगर आज, now the next question, so I do understand the state of Hindi literature is very bad. मैं आज ये decide करूं, या let's say I'm a budding author and हम्म। I want to write a Hindi book, हम्म। fiction. What advice would you give it to me? What cautionary advice would you give it to me? 100 पन्ने पढ़ने के बाद एक पन्ना लिखना चाहिए। यानी कि बहुत सारा पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स इंडिया में हुए, हिंदी राइटिंग हिंदी में भी हुए, उनको पढ़ने के बाद फिर लिखना शुरू करो। क्योंकि पहले परिपक्वता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए माइंड की। फिर धीरे धीरे बहुत सारा पढ़ने के बाद ही थोड़ा लिखा जाता है। जब तक आप उस चीज में बहुत स्किल्ड ना हो जाओ कि आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, या आप अपने आइडियाज से इंडिपेंडेंटली कुछ बना सकते हो। शायद स्टार्टिंग में आप किसी राइटर को इमिटेट करने की भी कोशिश कर सकते हो, यद्यपि मैंने अभी तक नहीं किया। पर अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, पर पढ़े बिना नहीं होता। लोग मैंने देखे हैं जो लिखने भी जाते हैं, वो सीधा पब्लिश करने के उसमें रहते हैं कि अब पब्लिश Yes, हो जाए, पर yes. उन्होंने पढ़ा बहुत कम होता है। पढ़ा बहुत Very ही कम interesting होता है। point. बहुत ही Very कम interesting. पढ़ा होता है। उनको लगता है हम दे जस्ट थिंक कि वो ये सोचते हैं, सब लोगों के अंदर ये धारणा दिखती है कि मैं तो अपने दिल की बात लिख रहा हूँ ना, तो मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। नहीं, अगर उसको लिखने ऐसा बनाना पड़े कि वो सुंदर लगे दूसरे को, Hmm. वो दूसरा पढ़ना चाहे, उसको वैसा बनाना सीखने के लिए भी, उन शब्दों को उस रूप में बनाना सीखने के लिए भी पढ़ना पड़ता है पहले बहुत, Hmm. ताकि अपनी बात ज्यादा बेहतर रूप से कह पाओ। Hmm. पर ये भी मैंने समय के साथ ही सीखी। मैंने भी शायद उसी उन्हीं गलतियों को करा है, बिल्कुल। पर मैंने समय के साथ सीखी हैं ये चीजें। मान लीजिए मैंने खूब पढ़ा और मैंने एक हम्म। मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करी है, जी। मैंने हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। अब मैं क्या, एक हिंदी बुक पब्लिशिंग का क्या प्रोसेस हो सकता है? क्या हिंदी बुक पब्लिशिंग में आपके सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट होता है? अगर होता है तो जी। व्हाट इज द बेस्ट रूट फॉरवर्ड फॉर अ पर्सन हु इज रिटन अ हिंदी बुक? अगर मैंने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है हिंदी की, क्या मैं, हम्म। कुछ ऐसे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं जो उसको देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो क्या रेट होता है? ये मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूं, पब्लिशिंग इंडस्ट्री के जी। बारे में जानना चाहता हूं, हिंदी जी। पब्लिशिंग इंडस्ट्री की, कि मैंने लिख ली जी। मैन्युस्क्रिप्ट, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मैं क्या करूं? जितना मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं एक विशेषज्ञ नहीं हूँ मार्केट का, पर जितना मैंने इतने समय में समझा, वो ये जाना कि दो ही प्रकार हो सकते हैं पब्लिशिंग के। या तो आप अपने आप पब्लिश करो, या किसी ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के पास जाओ। सेल्फ पब्लिश अगर आप करोगे तो मान लीजिए आप किसी पब्लिशर के साथ साठगांठ करते भी हो, तो वो आपसे पैसे लेंगे। बिल्कुल। और ट्रेडिशनल पब्लिशर आपके मेरिट के बेस पे ही शायद लें। पर आज का एक बहुत बड़ा एक विडंबना आ गई है इस स्थिति में। अगर हम ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की बात करें, तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, एक तो पुराने जो पब्लिशर्स थे वो सारे डेड हो गए हैं या लॉस में चल रहे हैं, वो पब्लिश ही नहीं करते हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा, और मुझे बहुत दुखद लगता है, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा डाइवर्ट हो जाऊँ तो आप वापस लाना मुझे इस पर। आप देखिएगा हिंदी की जो कवर होते हैं ना, यस। हिंदी की किताबों के, दे आर नॉट गुड। दे आर एब्सोल्युटली नॉट। नॉट। वो नो। बहुत पुराने आर्ट वर्क को लेके चल रहे हैं, जो पुराने बिल्कुल। समय में अच्छा माना जाता था। बहुत सही अब पॉइंट आपने उठाया है ये। इंग्लिश की किताबें पकड़ी भी इसलिए जा रही हैं क्योंकि वो इतने अच्छे से क्राफ्टेड होती हैं। एब्सोल्युटली। राइट। तो कोई एब्सोल्युटली। कर ही नहीं रहा है उतना, वो पुराने चित्र और पुरानी बातें ही चल रही हैं अभी तक, और कोई उतना लगा नहीं रहा है। तो ट्रेडिशनल पब्लिशर ऐसा मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, बहुत कम है, गिन गए हैं बहुत ज्यादा, जो नए आर्ट वर्क के साथ चीजें लाएं, नए स्ट्रेटेजीज के साथ मार्केट में खेलें। वो इंटरेस्टिंग। पुराने लोग हैं, वो पुरानी ही बातें कर रहे हैं, उनमें नए विचार ही नहीं है, वो उसी में सिकुड़ गए हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल पब्लिशर अब चलते ही नहीं है या घाटे में चल रहे हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल पब्लिशर ऐसे हैं जो अब ट्रेडिशनली पब्लिश ही करना बंद कर दिया। मैं जानता हूँ कुछ को, क्योंकि बात हुई मेरी। वो अब सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ गए हैं, यानी कि जो पहले आपसे पैसे नहीं लेते थे आज से 15 साल पहले, वो भी अब पैसे लेके कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में एक और प्रॉब्लम है। बहुत सारे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स भी अब ये देख रहे हैं कि आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं, क्या आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं कि नहीं।
क्योंकि अल्टीमेटली उनको तो मुनाफा चाहिए ना। अगर 1 लाख में से 200 लोग ही आपकी किताब पढ़ेंगे, उनको कोई मुनाफा नहीं है। 5-10 हजार लोग पढ़े तो वो कहेंगे हाँ इसका हम किताब पब्लिश कर देते हैं। तो सेल्फ पब्लिशिंग एक ऑप्शन बचता है। सेल्फ पब्लिशिंग में एक प्रॉब्लम है कि 10 में से 8 किताबें जो होती हैं वो बहुत ही इमेच्योर और कुछ भी छपा होता है, उसमें बिल्कुल, कोई गुणवत्ता नहीं होती। बिल्कुल, उसके कारण एक और चीज होती है, जो 2 किताबें अच्छी होती हैं वो भी छिप जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। पर अब यहाँ पे एक विडंबना वाली स्थिति है, और ये बहुत व्यक्ति टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आप कैसा रूट चूज करते हो। दोनों ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल पकड़ पाते हैं तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं है। हुँ, क्यों? क्योंकि उसमें एक ये रहेगा कि आप नहीं लग रहे, पहला। दूसरा, आपका एक रेपुटेशन बनता है। हुँ, ठीक है। पर मेरा खुद की पहली किताब थी, मुझे उतनी वो नहीं थी, और मैं वो बिल्कुल नहीं कहूंगा, तो मैंने सेल्फ पब्लिशिंग, एक हाइब्रिड काइंड ऑफ पब्लिशिंग में करा है मैंने ये। समझ गया मैं, यस। हम्म। तो पर इसमें मैंने अपनी तरफ से गुणवत्ता लाने की पूरी कोशिश की, और आगे जाकर के मैं भी ट्रेडिशनल के लिए ही कोशिश करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। पर बात ये जरूर है कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग अब बहुत डिफरेंस आ गया, और इसका ये मतलब नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनली पब्लिश नहीं होते हैं, वो सेल्फ पब्लिश ही करते हैं, पर वो अच्छा लिखते हैं और अच्छी चीजें बांट रहे हैं। पर मार्केट पे बहुत डिपेंड कर रहा है, मार्केटिंग कैसे करते हो आप उसकी, या अन्य चीजें कैसे होती हैं उस चीज में। हिंदी प्रकाशन बहुत बुरी स्थिति में है। अगर आप हुँ, विश्व पुस्तक मेले या अन्य उसमें भी जाओगे तो आपको 2-4 ही ऐसे मेले वो दिखते हैं, स्टॉल जो सही में बहुत चल रहे हैं। बाकी खड़े स्टॉल दिखते हैं मुझे ज्यादातर। तो अगर आप इंग्लिश के पेंगुइन रैंडम हाउस से किसी से कन्वर्ट करो, तो उस लेवल का कोई हिंदी पब्लिशर अभी है ही नहीं बिल्कुल इंडिया भी में। नहीं है। एंड आई थिंक आपने बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, थैंक यू। आपने बुक कवर की जो बात बोली है, फॉर दोज़ हम्म। पीपल हू से कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर आर इडियट्स। I do that, and every consumer does that. This is a हम्म। book cover is equivalent to a good trailer of a movie. You would राइट। want it to be edited properly. You would want it to sell. राइट। This is marketing. And I think if राइट। the Hindi publishing industry is not taking this seriously, I think this is hampering their reachability as well as राइट। discoverability, because art is very important, extremely important. मैं करेक्ट। आजकल notice करता हूँ some publishers, Hatchet specifically and HarperCollins, beautiful, ब्यूटीफुल कवर्स, ब्यूटीफul। हम्म। and not just fiction books, non-fiction books, हम्म। amazingly beautiful and thought-provoking. You're like, wow, is this abstract हम्म। art? Is this, there is, you can see there's logic that is behind, and I do not see that हम्म। in Hindi publishing sector, and that is a नहीं। very sad thing. हम्म। टूम्ब ऑफ स्टोन्स जो इनकी थी, टॉम ऑफ गीतांजलि स्टोन्स। श्री की, उनकी हिंदी कवर वाज ओके. हम्म। That's the only book, and I think the page quality, the print quality, the fonts and everything, it's just pathetic. राइट। राइट। It's not been experimented with, and I think, and that is why, when I was reading a book on Kindle, it was a great experience because Kindle में वो निखर के आता है, तो और अच्छा लग हम्म। रहा था मेरे को. So I think हम्म। that is why, such platforms could be helpful हम्म। if somebody doesn't want to go there. But no, करेक्ट। so Nanil, another very interesting thing I want to ask you. So I've gotten a clear picture. Now next, again, I am somebody, let's say कि मैं आज आपसे बोलूं कि ननिल, I want to start venturing into the world of Hindi literature. I want to read हम्म। some great fiction book. हम्म। Suggest me some of your personal favorite authors that you would want. Give me a list of 4-5 names that the हम्म। viewers would also want to know. If somebody wants to venture into the world of Hindi literature, be it philosophy, be it literature, be it anything else, couple of authors and books that you have read, that you are reading, that you would want to recommend, I would want to understand your book recommendation list. The first has to be हम्म। Streetlight. या और तो और दूसरी फिर होंगी, मेरे को निर्मल वर्मा की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। Okay. निर्मल किस वर्मा, बारे में लिखते हैं वो? मैं बहुत मार्मिक कहानियां हैं उनकी, मतलब वो मैंने उनकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारी पढ़ी हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, मतलब उनकी, मतलब बहुत फिलोसफिकल और सहज रूप में, बहुत सटल वे में बहुत कुछ किया जाते हैं। Hmm. प्लॉट अगर सिंपल भी होंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको आनंद आएगा। Okay. एक वो है। मेरे को कुछ नॉवेल्स बहुत अच्छी लगी थी, बहुत जो अच्छी लगी थी वो एक जैसे गुनाहों के देवता, धर्मवीर भारती की। Wow. इट्स अ रोमांटिक स्टोरी, बट उनका रोमांस भी बहुत अलग प्रकार का होता है, बड़ा पवित्र टाइप का रोमांस था उस किताब में। Okay. आधुनिक अगर लेखकों में बोलूं जो अभी जीवित हैं, और उस तरह से विनोद कुमार शुक्ल मुझे बहुत अच्छे लगे। वो थोड़ा मैजिकल रियलिज्म जो हम इंटरनेशनल लेवल पे हारुकी मुराकामी और इन सब का देखते हैं, उस तरह का, उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मैजिकल रियलिज्म वाला फॉर्मेट रहता है उनके साहित्य में और हर चीज में। तो उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं, जैसे मानव कौल, तो Call. वो भी Sorry. काफी अच्छा लिखते हैं, बहुत
बहुत सारा उन्होंने साहित्य लिखा है पिछले 10 सालों में, तो He's उनकी an किताबें actor, पढ़ right? ली। He's an ही इज actor, एन right? एक्टर, ही इज एन एक्टर बट ही राइट्स वेरी ब्यूटीफुली, और Yes, बहुत he's a सारा great उन्होंने actor. साहित्य लिखा। And he writes very ग्रेट एक्टर एज वेल। पोएट्री, कविता बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं। उनकी रिसेंटली किताब भी आई हिंदी में। रिसेंटली अभी उन्होंने एक लॉन्च भी करी। आई हैव सीन हिम इन सम पॉडकास्ट। जी, उनकी उनकी किताबें आती रहती हैं, हर साल ही आती है उनकी किताबें, तो उनकी कुछ किताबें पढ़ी थी, वो अच्छे लगे थे। बाकी मेरे परिचित में भी एक है, तो लप्पू झन्ना उन्होंने लिखी है, अशोक पांडे, उनकी भी हिंदी युगम से आई थी, तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, पर जो क्लासिक राइटर्स थे, हम्म। क्लासिक राइटर्स में मुझे निर्मल वर्मा से ज्यादा अच्छा अभी तक कोई लगा नहीं, मतलब जितना मैंने पढ़ा है। ओके। बाकी जैसे अगर कुछ लोग होते हैं जो बहुत उस तरह का जो सहज, और हाँ मुझे अज्ञेय की कविताएं जो हैं वो अपने स्टाइल की लगती हैं। अच्छा। अज्ञेय जिन्होंने अज्ञेय का भी जब मैं जो देखता हूँ, उनकी 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 किताब है शेखर एक जीवनी, एक उपन्यास है, और उनकी जो कविता शैली लगा, फिर बाद में जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा ये मेरे तरह के लिख रहे हैं, और वो बात लिख रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ कहीं ना कहीं, वो लिख के चले गए हैं हालांकि। तो अज्ञेय की कविताएं बहुत अच्छी हैं, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, ये सारी किताबें हैं उनकी, बहुत बेहतरीन किताबें। तो बहुत सारे शायद ऐसे क्लासिकल राइटर्स होंगे जो पढ़े जा सकते हैं। और आज की कंटेम्प्रेरी में मुझे एक लप्पू झन्ना बहुत अच्छी लगी थी, मानव कौल की किताबें अच्छी लगी थी, कुछ प्रकाशक हैं जो बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं, तो हाँ। ब्रिलियंट यार, थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन। आई वुड पर्सनली चेक देम आउट बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि मैं थोड़ा डीप डाइव करूँ उन चीज़ों पे, थोड़ा पढूं। मैंने एक ही हिंदी किताब जो ढंग से पढ़ रहा था वो मृत्युंजय थी, बिकॉज हम्म। वो मेरे मदर भी रिकमेंड करती थी। मृत्युंजय आई थिंक और जैसे इट्स अगर वेरी। किसी को आध्यात्मिक वो पढ़नी है तो एक वो उनकी थी, आध्यात्मिक वो एक क्या नाम था उसका, अम्म, मानस एक हंस, शायद ऐसा कुछ अच्छा किताब है। अच्छा। ओके। वो तुलसीदास की बायोग्राफी टाइप का बनाया है, मतलब तुलसीदास की इंटरेस्टिंग। लाइफ को फिक्शनलाइज करा गया है। बहुत ब्यूटीफुल है, जो ज्यादातर धार्मिक टाइप के और भक्ति वाले टाइप के लोग होते हैं उस किताब को पढ़ते हैं। ब्रिलियंट। मानस के हंस, राइट। तो वो भी है, वो मेरे को पढ़ी है, मैंने पढ़ी नहीं है, पर हाँ उनको उसको भी पढ़ा जा सकता है। Brilliant, brilliant. हम्म। Brilliant, yeah. Thank you for the recommendation. Nalin, what are your next working? What are your future plans? As in, what next can we expect from you? आप क्या सोच रहे हो in terms of your next work, in terms of next book? जी, तो अभी मैं इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज पे काम कर रहा हूँ अपनी। उसके बाद मेरा जो उपन्यास होगा उसको मैं एक मास्टरपीस की तरह लाना चाहता हूँ, ये मेरा एम्बिशन है। Hmm. यानी कि वो उसका थॉट और प्लॉट मैंने बहुत लोगों को बताया, एंड दे वर ऑल अप्रिशिएटिंग द प्लॉट। मैं उसको लाना चाहता हूँ और उसको हिंदी में ही लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसी कोई हिंदी में भी आए। उस पर मैं बाद में 1-2 साल बाद काम करूंगा, पहले मैं अपनी लघु कथाओं पे काम कर रहा हूँ, Okay. उसको प्रकाशित करेंगे। उसके बाद मैं उपन्यास पे काम करूंगा, उपन्यास पे मेरा बहुत सारा मेहनत और बहुत सारी ऊर्जा और कोशिश और प्रयत्न ये सब लगेगा उसमें। तो इन दो चीजों पे अभी काम चल रहा है। Okay. Perfect. So, I mean, by next year, आप इसको या मोस्ट प्रकाशित करेंगे? प्रोबेबली, जी, बाय मुझे लगता है एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक आना चाहिए कुछ। Okay. Brilliant. चलिए हम्म। ननिल, नाउ वी हैव कम, वी हैड अ ग्रेट जर्नी। बहुत हमने टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, पर्सनल लाइफ, किताबों, जी। आपकी खुद की किताब पर डिस्कस करा। मैं लास्ट सेगमेंट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं लास्ट सेगमेंट में, जब हम आते हैं, अगर किसी ने फिक्शन किताब लिखी होती है तो हम हम्म। उनको बोलते हैं कि वो हमें कुछ एक एक्सक्लूसिव कहानी सुनाए, ओके। समथिंग दैट हैज नॉट बीन पब्लिश एनीवेयर। ओके। If there is a non-fiction author, we ask them to recite something from the book. ओके। You are a poet. हम्म। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉर दिस पॉडकास्ट ओके। रिसाइट एन एक्सक्लूसिव पोएम that हम्म। is, you might have written it somewhere but it's not published. It should be something exclusive for the viewers of our podcast that will be हम्म। created as a separate clip as well, and a great हम्म। literature content could be created. ओके। So now what I'll do, श्योर। I'm going to mute myself. ओके। All focus will be on you. ओके। You have the mic, you have the stage. हम्म। Let's start. सो इट्स अ लॉन्ग पोएम एंड रिसेंटली रिटन। इट्स कॉल्ड, बहुत रेडिकल लग सकता है टाइटल, बट इट्स गुड। मैं समेट लूंगा और जला दूंगा। मैं समेट लूंगा सब स्मृतियां अतीत की, जिनमें मुझे प्रेम प्राप्त हुआ था, जब मुझे समझा गया था, जब किसी ने कहा था मुझसे कि वह मुझसे प्यार करती है, जब किसी ने कहा था कि मैं अद्वितीय हूँ, विलक्षण हूँ, नेक हूँ, विशेष हूँ, सच्चा हूँ, सुंदर हूँ जैसा हूँ।
जब किसी के साथ बीते थे पल, साझा समझ, स्नेह, हर्ष, मस्ती मजाक के, जब बैठ के दो लोगों ने अपना अपना दुख साझा किया था, जब किसी के साथ मैं एक हुआ था, जब मेरा मैं कहीं खो गया था, जब मैंने कुछ सुंदर देखा, पढ़ा, सुना या जाना था, जब मुंह से आहा का उद्गार हुआ, जब कामुक करहा की आह निकली थी, जब मैं किसी के काम आया था, जब मुझ में प्रेम, दया, करुणा जगी थी, जब किसी ने मुझे प्रेम से देखा था, जब किसी ने मुझे अपना माना था, जब मैं मेरी नजर में पड़ा हुआ, जब मुझे कुछ मन चाहा प्राप्त हुआ, जब मैंने मुझे स्वीकार किया, जब मैं निमित्त बना किसी का दुख हरने में, जब मैं किसी भूखे को खाना खिला सका, जब किसी नन्ही बच्ची की मासूम आंखों ने मुझे पिघला दिया, जब किसी कुकुर ने मुझे पूरे दिन याद किया, जब खेल खेल में दिन बीत गए, जब खिलौनों से खेलते रहे, जब किसी कहानी का किरदार मेरे जैसा लगा, किसी गाने के बोल अपने लगे, जब किसी चलचित्र का मुख्य किरदार मैं बना, जब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं नायक हूँ मेरी कहानी का, जब लगा कितना असाधारण हूँ, जब जाना कितना साधारण हूँ, जब देखा सबकी एक कहानी है, जब देखा भाईचारा, जब जाने नशे के लुत्फ की पूजा वंदना, जानी सार्थकता निरर्थकता में, जब जाना कारणों के कारणों को, जब जाना मैं करता नहीं हूँ, जब जाना मैं हूँ तो दिव्य हूँ, मैं समेट लूंगा इनको और जला दूंगा स्मृतियों की उस सूची को जिनमें इन जैसों के विलोम निहित हैं। भूल जाऊंगा वे दर्द, व्यथा, दुविधा, डर और कहूंगा उसे मेरा दिव्य स्वरूप, मेरा इष्ट, स्वयं मैं, ब्रह्मांड। बस यही था। Beautiful, man. Absolutely beautiful. It was remarkable, Nalin. Really, really, really nice. Again, lot of things, बहुत चीज़ें आई दिमाग में. I think एक कविता की सुंदरता यही होती है कि you take different people take different things from it can राइट mean राइट। anything. It can blend into your life. It can blend into anything. जी। Beautiful, absolutely beautiful. Thank you, Nanil, so much for this beautiful, beautiful, beautiful poetry and the way you recited it was. मतलब मैं आपको सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि सर्दी में किसी ने मुझको गरम वार्म कोको हाथ में पकड़ा दिया. I जी। think small luxuries of life. जी। Small luxuries of life. Thank you so much for reciting this. And thank you जी। again so much, Nalil. This has been really beautiful. I'm gonna quickly recap what we did. We praised and we dissected your book, Streetlight. We discussed some of the poems that I personally felt were brilliant. I've personally related. Then we went into your personal childhood, and thank you again for opening up about whatever things you were able to suggest. We were able to go deep into the spiritual aspects and a lot of metaphysical aspects. Then we जी। were able to explore the current Hindi literature scene and scenario, which फाउंडेशन। I think is very important for people to understand. And also, we were able to answer certain questions for people who are interested in this vertical, who want to write and get राइट published in the Hindi sector. And finally, it was amazing to know about your future plans of your next book. And राइट। the ending with this beautiful poetry and this exclusive content was absolutely brilliant. Thank you again, Nanil, for being on this podcast with us. This has been one of the best recordings that we have done so far. And I जी। think this is the kind of recording which will not have a lot of edits in it, हम्म। because it's very crisp. We didn't हम्म। overdo it. We didn't underdo it. राइट। This is the right percentage that we discuss, because of course we'll do this thing more. The next हम्म। time you come up with the next book, we're gonna do a pre-launch or something like that over here. That's the concept. ओके। The हम्म। first podcast is always the breaking of the ice to understand the author, and then हम्म। whenever they are with their books and everything, this is what we'll. राइट। So thank you again, Nalin.